কেশব স্যার, রেকর্ডিং স্টার্ট হয়ে গেছে। আমি স্যারের কাছে অনুরোধ করছি, শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে, স্যারের অনুমতি দিলেই আজকের এই পর্বটি আমরা শুরু করব। স্যার, আচ্ছা, নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা, গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। সুস্থ দেহে সুস্থ মন, এই নিয়েই আলাপন। আমরা সকলেই উপনীত হয়েছি আজ 81তম পর্বে। ইতিমধ্যেই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আজকের মুখ্য আলোচক অধ্যাপিকা সুমন পাণ্ডে মহাদেবেন মহাশয়া, যুক্ত হয়েছেন আমাদের মহাবিদ্যালয়ের সম্মানীয় অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডক্টর দেবপ্রসাদ সাহু স্যার, যুক্ত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে আমাদের আলাপনার আয়োজককারী সম্পাদক ডক্টর কেশবচন্দ্র গোপ স্যার, আছেন আমাদের মহাবিদ্যালয়ের সম্মানীয় অধ্যাপিকা ডক্টর নিতু দত্ত ম্যাম, এবং এছাড়াও শারীরশিক্ষা জগতের বিশিষ্ট ক্রীড়া অনুরাগী ব্যক্তিবর্গ, অধ্যাপক অধ্যাপিকা, শিক্ষক শিক্ষিকা এবং আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ। প্রথমেই আমাদের সেবাভারতী বিদ্যালয়ের আলাপন পরিবারের পক্ষ থেকে সকলকেই জানাই শুভ মহাসপ্তমীর একরাশ শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। আশা করি সকলেরই পুজো ভালো কাটছে এবং ভালো কাটুক এই কামনা করে আমরা শুরু করতে চলেছি আজকের পর্ব, যার শুভ সূচনা হবে আমাদের মহাবিদ্যালয়ের সম্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অধ্যাপক ডক্টর দেবপ্রসাদ সাহু স্যারের হাত ধরে। আমি স্যারকে অনুরোধ করব আজকের এই স্বাগত ভাষণ রাখার জন্য, প্লিজ স্যার। নমস্কার। আজ এক মহান দিন বাঙালির পক্ষ থেকে, আজ মহাসপ্তমী। এই মহাসপ্তমীর পুণ্য লগ্নে সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সবাইকেই স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমাদের আলাপনের 81তম পর্ব। এই 81তম পর্বে যারা উপস্থিত হয়েছেন, যারা বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের যারা বিশিষ্ট শিক্ষক শিক্ষিকা উপস্থিত আছেন, মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সবাইকেই স্বাগত জানাচ্ছি। আলাপনের পূর্ববর্তী বক্তা যারা আলাপনকে সমৃদ্ধ করে আলাপনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে সহমত পোষণ করেছেন, মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাদেরকেও স্বাগত জানাচ্ছি। I heartily welcome today's distinguished speaker, Dr. Suman Pande Mahadevan Mahashaya. She is Associate Professor of Department of Physical Education and Sports, Savitribai Phule, Pune University, Maharashtra. Today her lecture topic is All in Physical Education and Sports. I am very much thankful for you. বিশেষ বক্তব্য না রেখে আরেকবার সবাইকেই স্বাগত জানিয়ে এই স্বাগত ভাষণ শেষ করছি। নমস্কার। অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের মহাবিদ্যালয়ের সম্মানীয় অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডক্টর দেবপ্রসাদ সাহু স্যারকে, যার স্বাগত ভাষণের মধ্যে দিয়ে আমাদের এই 81তম পর্বের শুভ সূচনা হলো। যে পর্বে আমাদের মুখ্য আলোচক আজকে বক্তৃতা রাখবেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইন ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড স্পোর্টস। এরপর আমি এর মধ্যেই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আমাদের প্রাক্তন বিশিষ্ট শারীরশিক্ষাবিদ ডক্টর অরুণ কুমার উপ্পল স্যারকেও স্বাগত জানাই। এবং আমি অনুরোধ করব, আই উড লাইক টু request Dr. Nitu Datta ma'am to introduce our today's distinguished speaker, Dr. Suman Pandit Mahadevan ma'am. Thank you, Dr. Das. It's very nice to see, very stunning, very gorgeous, very down to earth Suman ma'am. Always very nice to see you, but protocol for introducing in a scientific manner, like chronological manner, I'll go for it. Well, good evening, Uppal sir. Very nice to see you, sir. After a long time, how's your health? Your institution's associate professor has joined us today. So Right. For you also. Before you say anything, just I ask for your pardon. It's so nice to see you, Uppal sir. No, I mean, whenever my he comes pleasure. on the screen, I still get goosebumps because he has taught us for a very brief period. So it has been Suman, pleasure is mine. I Yes, sir. feel so pleased that my students are doing so well.
So please go ahead and make your presentation. No With all problem. your blessings, sir. And Right. it's a pure delight to have you here. And I'm so happy. The moment your screen popped up, I was so happy. Okay. Sir Same is is there. here. Same is here. I am also indeed happy to be a part of this. Thank you so much. Thank you. Keep Right, blessing us, right. sir, and keep inspiring. My blessings are always with my students. Thank you, sir. Okay, okay, let us Sorry. conclude then, sir. It's okay, ma'am. Fine. Good evening, ladies and gentlemen, respected dignitaries, respected Principal Seva Bharati Mahavidyalaya, Professor Dev Prasad Sahu, sir, and my dear students. I am Dr. Nitu Datto, serving as Assistant Professor in Seva Bharati Mahavidyalaya. It is my distinct pleasure to introduce a esteemed scholar and dedicated educator. With over 18 years of enriching academic and professional experience, Dr. Suman Pandey Mahadevan, ma'am, stands as Distinguished Associate Professor in Physical Education and Sports at Savitribai Phule Pune University, Maharashtra. A trailblazer in a field of physical education, Dr. Suman Pandey combines a deep passion for sports with unwavering commitment and advancing educational standards. Her academic journey, underscored by PhD in physical education and a gold medal in her master's degree from prestigious Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, reflects her dedication to excellence. Dr. Suman has not only excelled as an educator, but also as a leader and innovator in sports education. Having held key positions such as chairman of Board of Studies and member of the Academic Council, she has played a pivotal role in shaping the curriculum and fostering institutional development. Her influence extends to international platforms through her involvement in bodies like International Association of Physical Education and Sports. A prolific researcher and speaker, ma'am has contributed significantly to the academic community with over 15 research papers in leading journals, numerous keynote addresses, and lead lecture delivered at prestigious forums. Her work as research guide has mentored many PhD and MPhil candidates, nurturing the next generation of scholars. Beyond academic, Dr. Mahadevan has achieved remarkable success as an athlete too, having competed to the highest level, including national championship in athletics and inter-university competition in netball, volleyball, and cricket. She diverses expertise, strong leadership, and dedication to fostering holistic development make her respected figure in both academic and sporting circle. Today, we are honored to have her with us, and we look forward to her insights and expertise. Today, her topic is AI, which is very much demanding in modern arena in physical education and sports. Please join me and welcome Dr. Suman Pandey Mahadevan, ma'am. Welcome again, ma'am. Very nice to see you ever. Welcome, ma'am. Over to you, Dr. Das. Dr. Mrityunjay Das, are you there? Okay, we will not delay much, and now over to ma'am. Ma'am, you can start, and we are very much eager to listen to you, ma'am. Thank you so much, ma'am. And first of all, a very, very heartfelt gratitude for introducing me so well. By far, I think this is the best way I have been presented on any platform. So thank you so much for all the details you mentioned about me. And on the very onset, I would like to also extend my gratitude to Sahu sir, Mrityunjay sir, and of course you, because you were the link. We met in the last conference. It took us almost a year to have this. So I'm equally excited, but as far as my understanding goes, they are all students, those who are doing bachelor's in physical education, right? So I keep the content accordingly so that they get little gist of what AI and what is happening in terms of tech and the sports. So स्टूडेंट्स, आपको डरने की जरूरत नहीं है. मैं हिंदी में ही बात करूंगी. कुछ शब्द होंगे शायद जो आपको इंग्लिश में फेमिलियर होना जरूरी है, क्योंकि हमारे फील्ड का जो थोड़ा ड्रॉबैक रहा है वो यही है कि हमें जो प्रोफेशनल्स हैं लाइक अस एंड द यू, द फ्यूचर प्रोफेशनल्स, हमें खुद को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है. लॉट ऑफ चेंजेस आ रहे हैं, जो जैसे बोलते हैं ना, डार्विन का सिद्धांत है, जो अडेप्ट नहीं करेगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं हम उसको एटलीस्ट समझें कि क्या रिवॉल्यूशन आ रहे हैं. और एआई एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे नहीं लगता आज कोई ऐसा फील्ड बचा है जिसमें एआई नहीं यूज़ हो रहा है. और ये कब से यूज़ हो रहा है, आई वोंट ब्रैग, बट मैंने पहला मेरा प्रेजेंटेशन जब एआई के बारे में प्रेजेंट किया था, इट वाज 2018.
तभी इतना इसके बारे में बहुत सारी बातें नहीं हुई. देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस इन जयपुर एंड देयर आई सेट एंड देन आई स्टार्टेड digging little more in it. Then I had a session with PEFI in 2020, and now almost everyone knows about AI because every time you open an internet screen, आपके बगल में आ जाता है कि AI ऐप ये कर रहा है. AI ऐप से आप अपना रिज्यूमे बना लीजिए, अपना काम कर लीजिए, और अब तो अगर आप व्हाट्सएप भी खोलोगे आपके फोन पे, ऊपर AI असिस्टेंस आ जाता है. So before I start, shall I open my screen? Am I allowed to share? ओके. एंड स्टूडेंट्स, अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो प्लीज आपका कैमरा ऑन कर लीजिए थोड़ा सा, मुझे अच्छा लगेगा बिकॉज अदरवाइज आपको मैं मिल नहीं पाऊंगी, कभी देख भी नहीं पाऊंगी. सो आई कैन, इफ आई कैन सी सम ऑफ यू, सो इट विल. Suman, Sorry, some technical network. I was share the screen once again. Okay. Just let me know if the screen is visible and when the slides are changing. Is it visible? Yeah, ma'am. It is visible. Yes, ma'am. Okay, and I will just change the slide just to check whether it is shifting or not. Okay, can you see the different slide now? No, ma'am. No. Okay, No. so I have to quit the. No, for number 2. I'll keep it like this because Yeah. when we go Yes, on the ma'am. Yes, ma'am. Yeah. it becomes difficult. Yeah. Okay, so fine. थोड़ा सा हमने डिस्कस किया अभी. Going with the same flow. आप में से कितने लोग हैं और आप अपना माइक थोड़ा थोड़ा बीच में ऑन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बिकॉज इंटरेक्टिव रखेंगे तो मजा आएगा समझने में. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब कोई बता. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ भी आपके दिमाग में क्या आता है जब मैं बोलती हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो कोई 2 या लोग अगर बता सकते हैं कि दिमाग में पहली चीज क्या आ सकती है? कुछ भी आ सकता है, कोई मूवी का नाम भी आ सकता है. सो व्हाटएवर, जो भी, अगर मैं बोलती हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपके दिमाग में क्या आता है? कोई भी 2 स्टूडेंट अगर बता पाए, पहली चीज क्या आती है दिमाग में? Come on. फिर मजा नहीं आएगा. देखो, then I will be just delivering and you will be just listening. Anything, maybe a movie name, maybe a character, whatever. Okay, so we have to. Yes, Asit Ahir has raised hand. Yes, Mr. Asit. Okay, I think so. It's going to be like this. Anyways, don't hesitate. ऐसा कुछ बहुत ये प्लेटफॉर्म आपके लिए दिया गया है. जो भी क्वेश्चन बोलना to talk. Okay, then I'll start. अगर आर्टिफिशियल की बात करें तो ये बहुत नया नहीं है. कुछ चीजें इसकी बहुत पहले शुरू हो गई थी. अगर आपको याद हो तो एक कंप्यूटर बनाया गया था, सुपर कंप्यूटर बाय इंटेल, और जिसका एक चेस मैच गैरी कास्परोव, जो उस टाइम के चैंपियन थे, रूलिंग ग्रैंड स्लैम चैंपियन, ग्रैंड मास्टर थे, उनके साथ कराया गया था. और पहला मैच कुछ ऐसा हुआ था कि कंप्यूटर जीत भी गया था. देन ही चैलेंज्ड अगेन एंड देन ही वॉन, और कुछ वो चलता रहा, मैन वर्सेस मशीन का कॉन्टेस्ट. उसके बाद जो एक रिवॉल्यूशन आया इसमें, इट वाज इन लेट 90s, जब ओकलैंड की एक बेसबॉल टीम हुआ करती थी जिसके कोच बने मिस्टर बीन. और क्या हुआ, जब जैसे आप लोग आईपीएल का ऑक्शन देखते हैं आजकल, कैसे वो प्लेयर्स को बेच रहे हैं और कैसे आप खरीद रहे हैं ऐसे करके, तो मिस्टर बिली बीन के साथ क्या हुआ, उनको जो टीम मिली वो बहुत, उनको पैसा बहुत कम मिला टीम बनाने के लिए. सो उनको बहुत लिमिटेड बजट था और उसमें उनको टीम बनानी थी. और ये टीम ऐसी थी जो बहुत ही मतलब फेमस नहीं थी, कहते ना वो डार्क हॉर्सेस काइंड ऑफ अ थिंग. तो उन्होंने क्या किया, जितने प्लेयर्स अवेलेबल थे और उनकी जो सेट अमाउंट की गई थी ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट, उन्होंने उनका सबका डेटा निकाल के स्टडी करना शुरू किया. जब उन्होंने डेटा पढ़ा तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसको समझने की कोशिश की, और दैट आई विल एक्सप्लेन यू लिटिल बिट इन अ लेटर पार्ट. और उन्होंने क्या किया, उस हिसाब से कुछ सेलेक्टिव प्लेयर्स चूज किए बेस्ड ऑन दैट डेटा,
अपने बजट में उन्होंने एक टीम बनाई जिसको उस समय जब मैच टूर्नामेंट शुरू हुआ तो उसको मीडियोकर टीम कहा गया। जब टूर्नामेंट शुरू हुआ और बेस्ड ऑन हिज एनालिसिस एंड एवरीथिंग, टीम एक के बाद कंसेक्यूटिवली 9 मैच जीत गई एंड लेटर ऑन आई थिंक सो दे इमर्ज्ड एज अ विनर आल्सो फॉर दैट पर्टिकुलर टूर्नामेंट। और वहां से वो जो गेम चेंज हुआ, डेटा का जो शोर शुरू हुआ, डेटा एनालिसिस, एडवांस एनालिसिस, वहां से थोड़ा लोगों को लगा कि इट्स नॉट दैट इजी, वी नीड टू सर्च द डेटा। तो सिर्फ टॉप रैंकर्स को ही लेके टूर्नामेंट नहीं जीते जाते, आप एवरेज प्लेयर्स को लेके भी एक ऐसी टीम बना सकते हैं जो कि एक टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। और अगर आपको कभी मौका मिले, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत अच्छी मूवी बनाई गई, इसका एक मूवी बनाई गई जिसका नाम है मनी बॉल। तो शायद से ब्रैड पिट इज एक्टिंग एज अ मिस्टर बीन। प्लीज वो मूवी देखिए एंड यू विल गेट अ लिटिल मोर जस्ट अबाउट दिस। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, कंप्यूटर आने लगा, ऑब्वियसली सबसे रिवॉल्यूशन कंप्यूटर का आना, उसके बाद इंटरनेट का आना, उसके बाद गूगल का आना, और हमारी जनरेशन ऐसी है जिसने ये सारे चेंजेस देखे हैं और उसकी वजह से आने वाले रिवॉल्यूशंस को भी एक्सपीरियंस किया है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हाउ डज इट वर्क? ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आज हम बोले स्पोर्ट टेक, एक वर्ड हम बोलते हैं स्पोर्ट्स टेक मार्केट। I'll just come to my second screen. You cannot imagine what is the current worth of sport tech market globally. I mean, you won't be able to even guess. If I tell you, it is almost 21 billion dollars. अगर आप उसको इंडियन रुपीज में थोड़ा कन्वर्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से 21,000 करोड़ ऑलमोस्ट प्रेजेंट वैल्यू है। और ऐसा कहते हैं कि आने वाले और 2-3 सालों में, बाय द 2027 और 2030, इट विल बी ऑलमोस्ट 41,000 करोड़। कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी हैज बीन पुट इनटू स्पोर्ट टेक? और ये मनी कहाँ जा रहा है, आपको कैसे वो आपके लाइफ में आ चुका है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन कमिंग स्लाइड्स। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ऐसी थी ना, थोड़े गैप्स थे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में। गैप इन द सेंस, इफ आई से कि जब हम परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं, सो परफॉर्मेंस एनालिसिस में क्या होता है कि उस समय जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर इस तरह से नहीं थे, हमारे पास इतने गैजेट्स नहीं थे, तो इवन जो टेस्टिंग हम करते थे, स्पेशली फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग या इन टर्म्स ऑफ लिटिल योर परफॉर्मेंस एनालिसिस, उसमें कुछ लैक्यूनाज रह जाते थे। वी कुड नॉट गेट द एग्जैक्ट जिस्ट, स्पेशली जो रियल टाइम डेटा मिलता था वो मिलना मुश्किल हो जाता था। हम टेस्टिंग गेम के पहले, गेम के बाद कर पाते थे, ड्यूरिंग द गेम कुछ टेस्टिंग करना वाज नॉट पॉसिबल। फिर इंजुरी प्रिडिक्शन वाज नॉट दैट इजी, राइट? सो ऑल दैट small gaps now are being very nicely filled by the AI, which you will see when we go to the next slides. And you don't know how many innovations are awaiting in future, and it is as I say, it is going to be a complete game changer. It's not for only for players, it's not only for the people, stakeholders like companies, those who are investing in this sports. Even as a fan engagement has become totally a new, I would say, new market for the sports industry. आप अभी देख रहे होगे ड्रीम 11 जैसे जो आपके एप्स है, which makes you be in touch with the real game which is happening at the same time in the tournaments. Then उसके बाद अगर आप देखोगे तो वो जो फैन पेजेस होते हैं सोशल मीडिया पे, कुछ ये सब एक इंडस्ट्री के रूप में बाहर आ रहा है, एक मार्केट के रूप में बाहर आ रहा है, जिससे कि हर एक का एक्सपीरियंस बेटर हो रहा है। सिर्फ प्लेयर को फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ कोच को फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ कंट्रीज को फायदा नहीं हो रहा है या बिजनेसमैन को फायदा नहीं, इवन एज अ फैंस के लिए भी बहुत बड़ा इसमें स्कोप है। सो थोड़ा सा पहले समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे। बहुत सिंपल चीज समझाने की कोशिश करूंगी। जिन्होंने इसको ढूंढा था, इट वाज मिस्टर जॉन मैककार्थी। तो वो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। उन्होंने बोला कि मशीन्स में अगर हम कुछ एल्गोरिदम्स डालें, कुछ डेटा फीड करें, तो हम उनको इस लायक बना सकते हैं कि वो ह्यूमंस की तरह वर्क कर सके और ह्यूमंस की तरह रिएक्ट कर सके। उसको ही उन्होंने नाम दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ एक्टिविटीज जो कंप्यूटर के द्वारा की जा सकती हैं, जैसे कि स्पीच रिकॉग्निशन है, आप कुछ लर्न कर सकते हो, कुछ प्लान कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो। अभी तो बहुत कुछ है, मतलब आई डोंट थिंक सो, जैसा मैंने बोला है कि शायद ही हमारे लाइफ में अभी कुछ ऐसा होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अभी जिसका इम्पैक्ट नहीं आने वाला। आई डोंट नो कितने लोगों को पता होगा, किचन के लिए भी एप्स आने लगे टू मैनेज योर किचन।
कि आप जस्ट स्टोर करो, उसके भी ऐप्स हैं। आजकल फ्रिज भी, स्मार्ट फ्रिज आने लगा है, वो भी अंदर के बारे में आपको जानकारी देने लगा है। ऑफ कोर्स कॉस्टली है ये सारी चीजें, बट यस हमारे यहाँ है। आप लोगों ने अलेक्सा का एक्सपीरियंस लिया होगा। अलेक्सा, व्हाट इज द वेदर ऑफ, यू नो, इफ आई एम इन पुणे, आई विल से व्हाट इज द वेदर ऑफ पुणे, so Alexa will answer you what is the weather in Pune. You can ask about GPS. You see, you know, that lady in the Google telling you, guiding you on the roads with the real time data analysis. आपको नहीं लगता कि आपको Google GPS कैसे बता देता है कि आने वाली रोड पे कितना ट्रैफिक है? इमेजिन कैसे बता देता है, बिकॉज देर आर कैमराज, देर इज अ apps, there is a whole technology that detects, that take the Google photos, ऊपर से वो फोटोज लेते हैं जीपीएस से, और उसको जीपीएस से कनेक्ट करना, उसके बाद उसको ओरली उन कमांड्स को कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग, यू नो, कोडिंग, और फिर वो आपको कितना सिंपली, आप खाली जीपीएस ऑन करते हो, बोलता है कि आप you are able to manage or find your way wherever you are going to your destination. तो ये सारी जो स्मार्ट टेक्नोलॉजीज हैं, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। और इसमें और एक जो अच्छा ऐड हुआ वो ये है, जैसा मैंने बताया कि जब हम पहले फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग करते थे, एर्गोमीटर्स थे हमारे पास, ट्रेडमिल्स थी जिनमें हम कंप्यूटर से उसको कनेक्ट करते थे, और आप 2-4 वो पैड्स लगा के आप रनिंग करते थे और आपका डेटा कंप्यूटर पे आता था। बट वो क्या होता था तभी तक जब तक आप उस ट्रेडमिल पे और कंप्यूटर के पास हैं। बट जब आप गेम में खेलने जा रहे हैं, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट प्ले लाइक दिस। अब क्या है, वेरिएबल गैजेट्स हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, कैटापल्ट करके भी एक जब से शुरू हुआ था 3-4 इयर्स बैक, कैटापल्ट कंपनी ने एक वेरिएबल गैजेट्स बनाया था, जो यहाँ पे आप एक बैंड की तरह बांध लेते हैं, छोटा सा एकदम गैजेट है। वो क्या करता है, आपका पूरे मैच आप खेलो उसको बांध के, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई वायर्स नहीं है, नथिंग, राइट। और जब आपका मैच खत्म होता है, उसने पूरे मैच का डेटा आपके रूप में कंप्यूटर में आ जाता है, एंड यू कैन जस्ट प्रेस Ctrl+P फॉर द प्रिंट। उसमें आपका एक्सेलरेशन कब था, कितना था, आपने कितना किलोमीटर रन किया है, आपका पेस कब ज्यादा था, कब कम था, आपका हार्ट रेट कितना था, आपका रेस्पिरेटरी रेट, एवरी ऑलमोस्ट many, I mean, apart from very specific data, but most of the data is recorded during the play, and that is called real time data analysis. Real time, जो उस समय डेटा आ रहा है उसको एनालिसिस करके प्रेजेंट करना. So that is one of the very very important and unique feature of artificial intelligence. Okay, so coming to the next slide, this particular picture will tell you that artificial intelligence can help the machine to mimic human behavior. Okay, अब ये कैसे काम करता है, यहाँ पे ना 3 कंसेप्ट आप पढ़ोगे जब आपको कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जब आप देखने जाओगे, तो उसके सबसेट्स हैं. आर्टिफिशियल, सबसे पहले डीप लर्निंग आता है. डीप लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, एंड मशीन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ बिग अम्ब्रेला टर्म कॉल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बिल्कुल सिंपली 2-4 लाइनों में इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगी. ऑफ कोर्स वी आर नॉट टेक जायंट्स हियर, सो आई विल नॉट गो इनटू द कॉम्प्लेक्स थिंग्स. मशीन लर्निंग मिस्टर आर्थर सैमुअल ने 1959 में बनाया था, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ब्रांच है. ये क्या करता है, आप ना डेटा फीड करते जाओ, जितना डेटा आपके पास आएगा, और उसमें वो थोड़े एल्गोरिदम सेट करते हैं. उससे वो क्या करता है, ह्यूमंस को लर्न करता है जिस पे डेटा है, और ग्रेजुअली उसकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती जाती है. मैं एक एग्जांपल बोलती हूँ. आप में से कितने लोग हैं जो गूगल, जिनका गूगल अकाउंट है मोबाइल में? अगर आप अपने मोबाइल में, आई विल जस्ट शो यू, एक ऐसा ऐप देखेंगे, और अगर आपने, यस मैम सॉरी फॉर इंटरप्शन, और एक बार प्लीज स्क्रीन शेयर कीजिए मैम. स्क्रीन ऑफ हो गया, स्क्रीन शेयर. अच्छा, ओके, आई विल डू दैट, नो प्रॉब्लम. सो इफ यू सी, is it visible? ये हो चुका. Sorry, I'll show you. Visible. ओके, तो आपका ना, जब आप गूगल का कुछ फोल्डर खोलोगे तो साइड में ना एक ऐसा 4 फ्लावर जैसा होता है, 4 विंग्स का, जिसके नीचे लिखा होता है फोटोज, राइट? दैट इज गूगल फोटोज. अब गूगल फोटोज को अगर आपने बैकअप में डाला है और आपने उसमें व्हाट्सएप स्टोर किया है और व्हाट्सएप को भी परमिशन दी है, तो अगर आप फोन चेंज करते हो, आपका फोन खो जाता है, सब कुछ क्लाउड पे सेव है, तो जब भी आप नए फोन पे आपके गूगल अकाउंट से लॉगिन करते हो, आपका सारा फोटो का बैकअप वहां पे आ जाता है. अब ये मैं इसलिए बताया आपको क्योंकि जब आप, मेरा बर्थडे है, आपको लगा हम सुमन मैम को उनके फोटोज का वीडियो बना के भेजेंगे.
नॉर्मली क्या होता है, पूरे गैलरी में जाते हो, ढूंढोगे मेरे फोटोज कहाँ कहाँ पे है, फिर आप उसको कलेक्ट करोगे, फिर आप उसको वीडियो मेकर में डालोगे, एक गाना डालोगे पीछे अच्छा सा, और फिर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दोगे। गूगल फोटो के फीचर्स में क्या होता है, आप जब उसको ओपन करोगे और सर्च बटन दबाओगे तो जितने भी फोटोज, जितने भी कैरेक्टर और पीपल के फोटो आपके गैलरी में है, सबके छोटे छोटे फोटोज आ जाते हैं। आप एक इमेज पे, आपने उसमें मेरी इमेज पे क्लिक किया तो जितनी भी फोटो पे मैं हूं, सिर्फ वही फोटो आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे एंड यू कैन इजीली सेलेक्ट। अब कुछ फोटो ऐसे होंगे जिसमें ग्रुप फोटो में मैं होंगी, किसी में मेरे फैमिली के साथ होंगी। अगर आपको चाहिए कि सिर्फ मैं हूं तो उसमें ऑप्शन होता है ओनली द पर्सन आई हैव सेलेक्टेड, ओनली हिम और ओनली हर। सिर्फ मेरे इंडिविजुअल फोटो आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, इमेज रिकॉग्निशन के लिए मैं बताना चाहती हूँ। जब आपने मेरा फोटो सेलेक्ट किया, अगर कोई 200 लोग का ग्रुप फोटो भी है और उसमें मेरा फोटो इत्तू सा है, then also Google will recognize your face, facial recognition होगा और वो फोटो भी वहां पे पॉपअप होगी। Why? Because मेरे फोटो का इतना डेटा उसमें डाला गया है कि वो मेरे फोटो को, मेरे आई को, मेरे नोज को इस तरह से उन्होंने उस डेटा को रिकॉर्ड किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कि उससे मिलता जुलता क्लोज जो भी फोटो है वो आएगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम 90% इट इज करेक्ट। अब तो 99% करेक्ट होता है। समटाइम इवन मेरे बचपन की फोटो को भी उसमें आ जाती है, जबकि आपने मेरे अभी के फेस को कनेक्ट किया है, बट समहाउ विद दोस फीचर्स, आईज एंड ऑल दैट, दे इवन डिटेक्ट माय चाइल्डहुड फोटोज एंड पुट देम इनटू द सेम फोल्डर। बिकॉज ये इसका मशीन लर्निंग का फायदा क्या, जितना डेटा उसमें डाला जाता है उतनी उसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। आप फेसबुक पे देखो ना, आपने ग्रुप फोटो किसी कॉन्फ्रेंस का शेयर किया, उसमें वो आ जाता है टैग फॉलोइंग पीपल। वो इमीडिएटली फोटो को लेता है और आपके फ्रेंड्स लिस्ट में जो जो नाम है और जो उस फोटो से मैच हो रहे हैं इमीडिएटली कंपेयर होता है, और वो नाम भी अपने आप आ जाता है कि टैग मिस्टर नीतू मैम, टैग दिस पर्सन, टैग दैट पर्सन, ऑटोमेटिकली आ जाता है। सो दैट इज कॉल्ड इमेज रिकॉग्निशन, इमीडिएटली, राइट। अगर इसका और एडवांस वर्जन अगर मैं बोलूं, गूगल लेंस, किसी ने ट्राई किया है? आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपको चाहिए कि ये प्रोडक्ट मुझे कहाँ मिलेगा, आप सिर्फ गूगल लेंस ऑन करो, उसको क्लिक करो और वो इमेज को लेगा और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप डालो और वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कहाँ मिलेगा, कितने का मिलेगा, ये है क्या, कौन सी कंपनी बनाती है, एवरीथिंग, राइट। देन वॉइस रिकॉग्निशन, मेरे घर में अलेक्सा है, अगर आपको पता हो, गूगल का एक सीरी है और एक अलेक्सा है, गूगल होम, ऐसे डिवाइसेस बनाए गए हैं। सो ये आपका मिनी असिस्टेंट जैसा काम करता है। अगर मैं उसमें एक मोड सेटिंग कर दूं कि इट विल ओनली रिकॉग्नाइज माय वॉइस, सो व्हाट विल हैपन, मेरे आसपास कोई भी उसको कोई कमांड दे, इट विल नॉट एक्ट, इट विल ओनली रिकॉग्नाइज माय वॉइस। इवन अगर मेरा वॉइस थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है, वो कोल्ड और समथिंग, अगर मैंने मेरे अलग अलग वॉइस मॉड्यूलेशन का मॉडल उसमें कमांड में दिया हुआ है, एवरी टाइम आई गिव कमांड, अलेक्सा उसको स्टोर कर लेता है एज अ डेटा। तो मेरे आवाज में अगर थोड़ा भी फ्लक्चुएशन बिकॉज ऑफ वेदर और एनीथिंग होता है, इट इमीडिएटली टेक्स इट, उसको समझ में आता है कि मेरा ही कमांड है एंड इट रिस्पॉन्स। और इसने एक्सपीरियंस इतना अच्छा बना दिया है कि अगर आई डोंट नो, महिंद्रा हेक्टर, अगर आपने सॉरी एमजी हेक्टर, नॉट महिंद्रा हेक्टर, एक गाड़ी है, जब वो लॉन्च हुई थी 4-5 साल पहले, तो उसका टैग ही था इंटरनेट इनसाइड, राइट, इंटरनेट इनसाइड। अब उसकी वो प्रोग्रामिंग इस तरह से है कि सपोज इफ आई बाय that car, and the moment I switch on the car, I open the door, I said immediately, that artificial intelligence voice said, good morning Suman, so today how's your day, the temperature is this, and where would you like to head, regular office or what, whatever programming you want to feed in, it just comes like that, and it makes your experience itna personal, feel कि आप अकेले नहीं, कोई है जो आपका ध्यान रख रहा है। Okay, so that kind of a voice recognition is possible. Then if you see medical industry, they are able to label the x-rays also based on the face recognition and image recognition automatically। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत सारे एक्सरेज होते हैं, आप एक एक पिक्चर वो फॉर्म के साथ उसको एडजस्ट कर दो, दे इमीडिएटली लेबल इट। सो ये भी, जितना मशीन लर्निंग का सिर्फ एक है कि जितना ज्यादा डेटा उसको फीड करते जाएंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी उसकी बढ़ती जाती है। अब मशीन लर्निंग का ही एक सबसेट है डीप लर्निंग। ओके, जैसे हमारे ब्रेन्स में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं,
ऐसे ही टाइप से ना उसको डिजाइन किया गया डीप लर्निंग को। इसको मिस्टर आइगोर एजिनबर्ग ने किया था। ये मशीन लर्निंग का ही एक सेट है। ये इसको न्यूरल नेटवर्क बोला गया बिकॉज जैसे न्यूरॉन्स होते हैं ना हमारे ब्रेन में, वैसे ही इतने सारे नेटवर्क्स हैं डीप लर्निंग में, राइट। अब ये क्या करता है, यू नो, द न्यूरल नेटवर्क अटेम्प्ट्स टू सिमुलेट द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ये ह्यूमन ब्रेन को इमिटेट करने की कोशिश करता है ताकि आप जितना हो सके डिवाइसेस को ऑटोमेटिक बना सके। ये परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है, फिजिकल टास्क दिए जाते हैं और देखते हैं कि ह्यूमंस के बिना इंटरफेयर किए ये टास्क को कितना अच्छे से कर पाते हैं, जैसे कि रोबोट्स हैं। इसका सबसे अच्छा अगर मैं एग्जांपल दूं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अभी बीच में बड़ा उसका हल्ला आया था कि इंडिया में भी टेस्ला जो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स लॉन्च करेगा, बट ऑब्वियसली दे आर नॉट सेंडिंग इट टू इंडिया। बट टेस्ला ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि दे आर इनटू सेल्फ ड्राइविंग कार्स और समथिंग। और भी ना एक मूवी आई है, मतलब जस्ट अ मूवी बट इट इज बेस्ड ऑन दिस ओनली, CTRL कंट्रोल का जो हमारे कंप्यूटर में होता है ना, CTRL कंट्रोल। सो अभी जस्ट एक हफ्ते पहले रिलीज हुई थी नेटफ्लिक्स पे। आई वाज गोइंग थ्रू इट, तो उसमें ऐसे ही दिखाया कि अभी फ्यूचर में ऐसे एप्स आ गए कि आपको एक डिजिटल असिस्टेंट मिल गया है। आप कोई भी फेस चूज कर सकते हो। आपको सपोज मुझे आई लाइक अक्षय कुमार, सो मैंने अक्षय कुमार का फेस चूज कर लिया एंड ओके सुमन, और वो मेरा प्लान कर देगा पूरा शेड्यूल, मुझे आज क्या करना है, मेरा तबीयत कैसा है, मुझे दवाई कब खानी है, मुझे क्या खाना है, मुझे किधर जाना है, एवरीथिंग। इट्स काइंड ऑफ अ डिजिटल सेक्रेटरी, डिजिटल पर्सनल सेक्रेटरी। सो ये जो है ये डीप लर्निंग का नतीजा। तो डीप लर्निंग से मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग से पूरा अम्ब्रेला टर्म विच इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभी हम। अब स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स में जब एआई आ रहा है, यहाँ पे मैंने फिजिकल एजुकेशन को मैं कवर नहीं कर रही हूँ आज, वी विल स्टिक टू स्पोर्ट्स टुडे। स्पोर्ट्स में क्या है, ये सबके लिए विन विन है मोस्टली। अब मैं अगर सबकी बात करूं तो उसमें प्लेयर्स आते हैं सबसे पहले, ऑफ कोर्स हमारा पूरा स्पोर्ट्स जो है वो प्लेयर्स के आसपास घूमता है। दूसरे आते हैं कोचेस, तीसरा आता है जो टीम मैनेजमेंट्स हैं उनके लिए, देन ब्रॉडकास्टर्स जो राइट लेते हैं मैच को लाइव दिखाने के या उनके रिकॉर्डिंग्स दिखाने के, देन जर्नलिज्म जो रिपोर्ट्स बनाते हैं न्यूज़पेपर में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो वो करते हैं, पब्लिश करते हैं, टीम सेलेक्टर्स जो टीम सेलेक्ट करते हैं, ऑल्सो द फैंस, सबके लिए ये विन विन सिचुएशन है। और कैसे, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब क्या हो गया कि ना टेक्नोलॉजी को आप हटा नहीं सकते। जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी इवॉल्यूट हो रही है उतनी ही ज्यादा आपका स्पोर्ट्स का फील्ड इवॉल्यूट हो रहा है। हर प्लेयर को मौका मिल रहा है कि वो अपना बेस्ट दे पाए। अगर आप आगे देखो इस तरह के इमेजेस, जब आप कैन यू सी द इमेजेस ऑन द स्क्रीन? यस मैम। ओके, जब आप they are visible. सॉरी, They are visible. okay, thank you. So if you see these kind of images, when you open any match nowadays, whether it is tennis, whether it is cricket, whether it is baseball, football, do you see these kind of images in between whenever there is a break in the game or during the game also? How do you get these images? Because the data रियल टाइम एनालिसिस, दिस इज कॉल्ड रियल टाइम एनालिसिस। जब आप क्रिकेट देखते हो आपको दिखाते हैं कि विराट ने कितने रन किस डायरेक्शन में बनाए हैं, कितनी बाउंड्रीज मारी है, चलो वो तो कैलकुलेट भी हो जाती है। बट एक बॉलर ने 6 बॉल फेंकी है, वो कहाँ बाउंस हुई, कहाँ पहुंची, कैसे हुआ, ऑल दैट इमीडिएटली रियल टाइम, मैच चल रहा है और एनालिसिस होता जा रहा है, मैच चल रहा है एनालिसिस होते जा रहा है। सो ऑल दैट इज possible with the help of advanced data analysis, which is a part of sports artificial intelligence. If we go little further and if I take you little forward, इस स्क्रीन को मैं थोड़ा स्किप करके बाद में आऊंगी। अगर हम एआई इन स्पोर्ट्स की बात करें तो लेट्स स्टिक टू, मैंने थोड़े बहुत एरियाज हैं बट मैंने उनको थोड़ा सा कोशिश किया समराइज करने के लिए। ये 5 एरियाज में जो सबसे ज्यादा हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, पहला है स्काउटिंग एंड रिक्रूटिंग, दूसरा है ट्रेनिंग, डाइट्स, परफॉर्मेंस एनालिसिस, ऑल्सो इंजुरी प्रिवेंशन, assisting the coaches and referees, broadcasting and media, fan engagement, smart stadiums and real time experience. अब हम 1-1 करके देखते हैं थोड़ा सा। अगर मैं इसको और डिटेल में दिखाना चाहूँ मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 पॉइंट्स दिए हैं। These are, if you want to sum up this, the role of artificial intelligence in sports, you can take these points one at a time: talent identification and acquisition, game analytics, training and coaching, predictive modeling,
strategy improvement, injury prevention, fan engagement and immersive experience. So अगर मैं स्काउटिंग एंड रिक्रूटिंग की बात करूं, एक अगर हम देखें स्पोर्ट्स में, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होता था जब हम टीम सिलेक्शन करते थे, स्पेशली अबाउट द गेम्स इन विच द इट इज डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई द डेटा. अभी फुटबॉल का मैच चल रहा है, आपको टीम सिलेक्शन करना है, राइट? अभी फुटबॉल के मैच में आप बोलोगे कि ये, क्रिकेट में आपने बोल दिया कि जिसने ज्यादा रन बनाया उस बैट्समैन का सिलेक्शन होगा, जिसकी बॉलों पे रन कम बने, जिसने विकेट ज्यादा लिए उसको हम क्रिकेट में सेलेक्ट करेंगे, राइट? अब एक फुटबॉल का गेम चल रहा है, दोनों टीमों ने एक ही एक गोल किया है, तो ऑफकोर्स एक ही प्लेयर ने गोल किया है दोनों साइड से, एक प्लेयर ने इस साइड से, एक प्लेयर ने इस साइड से. इसका मतलब ये है कि बाकी फॉरवर्ड प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहे थे. अब इसमें हम किसको लें और किसको ना लें? सो पहले हम अपने मैनुअल क्राइटेरिया बनाते थे कि भाई इसका किसने कितना क्या किया, कौन कितनी देर खेला, किसने बॉल को कितनी देर रखा, बैठ के लिखते रहते थे, इसका गेम अच्छा था, इसने इतने फाउल किए, ये किया वो किया. इट वाज अ वेरी टायरिंग थिंग फॉर अ कोच टू डू, और मोस्ट ऑफ द कोचेस तो करते भी नहीं थे. इंटरनेशनल लेवल पे होता था, नेशनल लेवल पे तो आई डोंट थिंक सो इतना डिटेलिंग में किसी ने इस तरह से सोचा होगा, राइट? अभी क्या हो गया, आपने वो वेरिएबल गैजेट्स दे दिए, और उस टाइम पे क्या होता था, पार्शियलिटी भी हो जाती थी. कहते थे टीम स्पोर्ट्स में थोड़ा सा जैक होना चाहिए सिलेक्शन के लिए, इफ यू नो पीपल, क्योंकि कहीं कहीं पे 19-20 18-20 का फर्क होता है, तो वहां पे इजी टू मैनिपुलेट कि यार मेरे वाले को ले लो एक, या मेरे उसके वाले को ले लो, ऐसा हो जाता था समटाइम्स. ओके, सो अब क्या हो गया, आफ्टर यू वेयर दोज वेरिएबल डिवाइसेस, वो क्या करता है, कितना डेटा, जैसे उसने अच्छा खेला, अब अच्छे खेले को क्वांटिफाई कैसे करें, एज लॉन्ग एज उसने गोल स्कोर नहीं किया, तो ये क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता था, सब्जेक्टिव होता था. अब जब हम वो वेरिएबल डिवाइसेस प्लेयर्स को दे देते हैं और वो वेरिएबल डिवाइसेस पहन के खेलते हैं, तो उनका काफी हद तक जो डेटा है ना वो क्वांटिफाई हो जाता है. उनका हार्ट रेट से लेके, फटीक से लेके, इलेक्ट्रिक एसिड कब जमा हुआ, कितनी थकान आई, उसका पेस कैसा था, उसका कितने लेवल पे वो किस स्पीड से भाग रहा था, फॉरवर्ड जब भाग रहा था कितनी बार बॉल उसके पोजीशन में थी. कई चीजें जो हैं वो आप कैमरास और ये सेंसर्स, इनकी सहायता से उसको क्वांटिफाई कर पाते हो. फिर क्या होता है, अगर क्वांटिफाई है तो द वन हु स्कोर्स द मोर इजीली गेट इनटू द टीम. तो वो थोड़ा सा टीम सिलेक्शन में वो फायदा हो गया. अब अगर मैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की बात करूं, अब सपोज विराट कोहली ने 2020 से रिटायरमेंट लिया, राइट? अब अगर विराट कोहली अब आने वाले समय में वनडे से भी लेगा, टेस्ट से भी लेगा, हमें उसका रिप्लेसमेंट चाहिए, राइट? और उसके पहले जो उसकी जगह खेलते थे, जिसको विराट कोहली ने रिप्लेस किया था, उनके जैसा ही कोई चाहिए जो उसको मैच कर सके. सो है हमारे पास बहुत प्लेयर, बट कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं है, ये मैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. I think so someone's speaker is on, so my voice is getting so One of the student has raised hand. Okay, can we just finish this and you can write your questions? Nahi that flow will break. So if you can write your question and we will take it after finishing this. Okay, Okay, ma'am. okay, that would be fine. Okay, so टैलेंट में क्या होता है, जितने भी बैट्समैन जो आपके रहे हैं स्टार, उनका जितना भी डेटा था along with their body data, हाइट, वेट, आर्म स्ट्रेंथ, ये वो सारा डेटा अपने कंप्यूटर में फीड किया हुआ है. उसके बेस पे वो क्या करता है, कंप्यूटर कैलकुलेट करके इट प्रोबेबली गिव यू अ सिलेक्शन क्राइटेरिया कि भाई जिसकी हाइट इतनी है, जिसकी स्ट्रेंथ इतनी है, जिसका परफॉर्मेंस इतना है, जो ऐसा खेल लेता है, दैट विल बी एन आइडियल फिट. सो इट काइंड ऑफ, और फिर जब आपके पास प्लेयर्स आ रहे हैं सिलेक्शन ट्रायल के लिए, आप जब उनको डेटा को फीड कर रहे हो, सो इट कैन इजीली गिव यू 5 or 6 क्लोज मैच टू दैट क्राइटेरिया विच you have set for the selection. So somewhere even that talent identification becomes a little better and refined than it was previously. So that also कि भाई ये anthropometric measurement है, उसका ये डेटा है, तो वो कितना मैच करता है इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स के जो अभी तक अच्छा खेल रहे थे, क्योंकि वो प्रोवाइडेड वो डेटा आपके पास होना चाहिए. If that data is fed in that software, it becomes easy, कहते हैं ना, उसको पूरा काम करके, और वो ये सारा काम मिनटों में हो जाता है. ऐसा भी नहीं कि आपको बैठ के गिनतियां करनी है, आपको कैलकुलेशंस करने, मिनट में हो जाता है, राइट? सो क्वालिटेटिव चीजों को आप क्वांटिफाई कर सकते हो, और कई बार प्लेयर की प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए हम उसका फ्यूचर पोटेंशियल भी प्रोग्नोसिस कर सकते हैं.
कि what kind of a player he can turn into when after 5 years 4 years down the line if other things remain constant. So that kind of a thing can also be done while scouting and recruiting. बट हर और एक एक इंडिविजुअल प्लेयर का इतना एक्सटेंसिव डेटा एनालिसिस होता है. आई मीन आज अगर आप विराट कोहली का डेटा एनालिसिस डालो, पता नहीं कितने जीबी का डेटा सिर्फ उसके एनालिसिस के लिए यूज हो गया होगा. एवरी मैच, एवरी बॉल ही फेस, every type of tournament. I mean, if this is T20, it is 1 day or it is 5 days test match, all data is stored. और ये डेटा इसीलिए काम आता है बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब हम ये सारी चीजें करेंगे वी कैन यूज दैट डेटा. सो एक टाइम था हम कहते थे सबसे महंगा क्या है दुनिया में, तो लोग कहते थे सोना. फिर बोला सोने से महंगा क्या है, तो लोगों ने बोला हीरा. आज की डेट में सबसे महंगी अगर कोई चीज है तो वो है डेटा. और आपको पता भी नहीं डेटा की ट्रैफिकिंग होती है, डेटा को चुराया जाता है, डेटा को हैक किया जाता है, डेटा को बेचा खरीदा जाता है. जब आप एक एयरटेल का सिम खरीदते हैं तो आप वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन को बिना पढ़े साइन करते हैं. समवेयर इट सेज कि यस एयरटेल कैन यूज योर डेटा फॉर देयर पर्पस. वहां पे कहीं पे कुछ एक होता है और आपने उसको साइन कर दिया है. फिर डेटा जब किसी कंपनी को कस्टमर्स का डेटा चाहिए होगा तो वो एयरटेल को या ऐसी कंपनीज को कांटेक्ट करती है और वो फिर पैसे से इस डेटा को बेचते हैं. ऐसा होता है कि अगर आपको 1000 लोग का डेटा चाहिए तो 3 लाख में मिलेगा, 10,000 का चाहिए तो 30 लाख में मिलेगा. सो देयर इज अ वैल्यू टू योर इंफॉर्मेशन, यू मे नॉट नो दिस. और वो इंफॉर्मेशन हम बहुत इजीली दे देते हैं, उसके राइट्स दे देते हैं. कभी आप पेट्रोल पंप पे जब पेट्रोल भरवाते हैं, लकी ड्रॉ के नाम पे वो आपसे एक फॉर्म भरवाते हैं. कई बार होता है दे कम विद मैडम ये भर दो, लकी ड्रॉ में ये मिलेगा वो मिलेगा. तो आप बोलोगे नहीं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो सिर्फ फोन नंबर दे दो मैम. और ऐसा नहीं है लकी ड्रॉ नहीं निकलता है, मेरा 2 बार निकला भी है, ऐसी बात नहीं है. वो टी सेट वगैरह कुछ दे देते हैं आपको बुला के. अब क्या होता है, आपने लकी ड्रॉ में, आपको लगता है फोन नंबर देने में मेरा क्या जा रहा है, लकी ड्रॉ निकला तो निकला. और पेट्रोल स्टेशन पे वैसे भी लाइन होती है, आप खड़े हो बोर हो रहे हो, उसने बोला आपने लिख के दे दिया अपना फोन नंबर. और उसने इस तरह से एक दिन में नहीं तो 500-600 लोगों का डेटा कलेक्ट कर लिया, फोन नंबर सिर्फ, राइट. फोन नंबर या ईमेल जो आपने खुद से दिया है, उसने चुराया नहीं है. इट्स अ वेरी लेजिटिमेट वे ऑफ टेकिंग इट. उसके बाद क्या हुआ, उसने क्या किया, आपको 1000-2000 का 2 जनों का लकी ड्रॉ निकाल दिया. सोचो 5000 के बदले में उसको उतना डेटा मिल गया जिसके लिए उसको एटलीस्ट 30,000-40,000 पे करना पड़ता. सो वेरेवर यू आर गिविंग योर फोन नंबर्स, your mail IDs, be very cautious कि where you are putting your information, क्योंकि जितना ये अच्छा है उतना ही ये खतरनाक है. आपका इंफॉर्मेशन इस वक्त किसके पास है आपको पता भी नहीं है, और उस इंफॉर्मेशन का क्या यूज हो सकता है ये भी आपको पता नहीं. Anyways, we'll come to that point later. That is a drawback of the technology and artificial intelligence. So coming back to the next slide, because we do have time restriction also. Second जो है वो बहुत मतलब I would like to deliberate on this a lot कि training, diet and performance analysis. अगर मैं performance analysis से शुरू करूं तो कितने पहले हम बायोमैकेनिकल एनालिसिस करते थे, हम देखते थे कितने प्लेन्स हैं, एक्सिस है उसका, ये बाकी सारे जो भी हमने पढ़ा है पूरा बायोमैकेनिक्स, वो सारा हम मैकेनिकल एनालिसिस में लगा देते थे, राइट. प्लस हम उनके परफॉर्मेंस देख लेते थे, बहुत हुआ तो फिजियोलॉजिकल 4-5 पैरामीटर्स हम मेजर करते थे, उसके बेस पे हम परफॉर्मेंस एनालिसिस करते थे. अब ये काम बहुत टायरिंग होता था, बहुत टास्किंग होता था, ये इजी नहीं था. परफॉर्मेंस एनालिसिस करना वाज नॉट इजी अभी भी नहीं है, बट है कि अब विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जल्दी हो जाता है और बहुत सारी चीजें आपको नहीं हैंडल करनी पड़ती, आपको सिर्फ डेटा फीड करना पड़ता है. और समटाइम्स वो भी नहीं करना पड़ता, यू जस्ट मेक देम वेयर समथिंग and it automatically takes the data and feed it into the computer. All you have to do is sit and understand the analysis of that data. अब इसमें क्या क्या हो सकता है, ये कुछ टेक्निक्स हैं जो यूज की जाती हैं. ह्यूमन पोज एस्टिमेशन, लाइक व्हेन यू आर डूइंग योगा, जिम्नास्टिक, यू कैन सी योर पोस्चर्स एंड डू इट करेक्टली. एनोटेटिंग डेटा, देन बाउंडिंग बॉक्सेस, अ ग्लोबल प्लेयर ट्रैकिंग सिस्टम. ये कुछ टेक्निक्स है, अगर आप इनको पढ़ना चाहिए तो आप इसको गूगल में डाल के और डिटेल में इसके बारे में देख सकते हैं. बट ये टेक्निक्स है जिसको कि आजकल यूज किया जा रहा है परफॉर्मेंस एनालिसिस में. और तो और पोजीशंस का, प्लेयर्स का पोजीशन, अगर टीम गेम है तो पोजीशन वाइज एनालिसिस किया जा सकता है कि इस पोजीशन में कौन सा प्लेयर ज्यादा अच्छा खेल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम वी विल शफल द पोजीशंस, और उस पोजीशन पे उसका कंट्रीब्यूशन कितना था गेम में.
देन एज आई सेड वी कैन गिव देम वेयरेबल गैजेट्स जिससे कि हम उनका रियल टाइम डेटा एनालिसिस कर सकें। और जो हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा हम देखते हैं एज अ कोच, जो वो ऑब्जर्व करता है, दैट इज क्वालिटेटिव डेटा, और जो हमारे पास ये क्वांटिटेटिव डेटा आ रहा है, हम दोनों को कंबाइन करके एनालिसिस कर सकते हैं और हमें ज्यादा अच्छा एनालिसिस मिल सकता है, मोर प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट एनालिसिस यू कैन गेट। ओके, देन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंजुरी प्रिवेंशन। इंजुरी एक ऐसी चीज है जिसने बहुत प्लेयर्स का, कहते हैं ना, फ्यूचर स्पोर्ट्स करियर डिस्ट्रॉय किया है। एक इंजुरी आपका पूरा करियर खत्म करती है, ऐसे बहुत एग्जांपल्स है स्पोर्ट्स फील्ड में। अब होता क्या है इंजुरी प्रिवेंशन के लिए, आपको सेंसर्स दिए जाते हैं बॉडी में पहनने के लिए। वो क्या करता है, आपका ना मेजर करता है कि आपका कितना ओवर यूज हो रहा है बॉडी का, जॉइंट्स का, इनका, राइट। ट्रेनिंग के टाइम पे भी दिया जाता है। ऑल्सो इट डिटेक्ट्स योर फटीग लेवल्स बेस्ड ऑन different things with different programming which we have put into that software. जो प्रोग्राम आप डालोगे वो एनालिसिस वो करके दे देगा। और प्लस उस प्रोग्राम के डेटा को कलेक्ट करने के लिए आपको कुछ सेंसर्स दिए जाते हैं पहनने के लिए। तो अब क्या होता है, वो फटीग लेवल मेजर करता है, देन इट ऑल्सो कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द यूज ऑफ योर जॉइंट्स, मसल कितना यूज हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसके बेस पे वो प्रिडिक्ट करता है कि व्हेन इट इज अ रिस्क फॉर द इंजुरी। अगर वो डिटेक्ट हो रहा है कि आपके प्लेयर को रिस्क हो रहा है इंजुरी का, तो इट इज वेरी इजी फॉर अ कोच टू आस्क हिम टू सिट आउटसाइड फॉर अ व्हाइल व्हेन द बॉडी रिकवर्स एंड ही कैन गेट इनटू द फील्ड अगेन। बट नॉर्मली जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, हम इसको इतना प्रिसाइजली नहीं कर पाते थे। जब प्रिसाइजली नहीं कर पाते थे तो क्या होता था, कितनी बार ऑन द फील्ड इंजरीज हो जाती थी। तो इंजरी प्रिवेंशन इज अनदर अ बून फॉर प्लेयर्स इन विच एआई कैन हेल्प टू अ ग्रेट एक्सटेंट। उसके बाद एक ऐप है फूडवाइजर, और अब तो ये तो मैंने बहुत पहले ये फूडवाइजर एक ऐप ढूंढी थी, अब तो और अपडेटेड एप्स आ गए हैं, जो कि अगर आप एक प्लेयर का रूटीन डालो, उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, उसका गेम क्या है, उसके बॉडी के पैरामीटर्स पूछेगा, हाइट, वेट, एज, जेंडर, वो सब आप डाल दो और वो कस्टमाइज टेलर में डाइट प्रोग्राम्स आपको बना के दे सकता है। ऑब्वियसली जो प्रीमियम होते हैं वो पेड होते हैं, शुरू में फ्री में देते हैं पर बाद में वो प्रीमियम पेड करके देते हैं आपको। तो आपको सिर्फ अपना डेटा डालना है और वो कस्टमाइज करके सब दे देता है आपको कि आपको क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, रिकवरी फूड क्या होगा आपका, प्री कॉम्पिटिशन आप क्या खाएंगे, ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन आप क्या ले सकते हैं, आफ्टर द कॉम्पिटिशन व्हाट यू कैन ईट फॉर अ फास्टर रिकवरी। सो ऑल दैट कैन बी मेक कस्टमाइज, टेलर मेड, पर्टिकुलरली हम बोलते हैं कि स्पोर्ट्स में एक बहुत बड़ी चीज है जो समझना जरूरी है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, स्पेशली इंडिविजुअल डिफरेंस। तो एक वन साइज फिट ऑल जैसा बहुत रेयर होता है स्पोर्ट्स में। हम सबके लिए, टीम के लिए आप ट्रेनिंग बनाएंगे बट उसमें फिर प्लेयर के लिए इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्लान्स भी बनाने पड़ते हैं बेस्ड ऑन देयर पैरामीटर्स। तो ऐसे ही हर एक इंडिविजुअल के लिए हम एक डाइट स्पेशल प्लान करनी होती है, जिसके लिए ये जो कस्टमाइज डाइट प्लान जो मैंने बताया, फूडवाइजर एंड अदर जो हमारे एप्स हैं, दे हेल्प यू टू डू इट। आपको सिर्फ डेटा डालना है। और अब तो इतना आसान हो गया है नॉर्मल पीपल के लिए भी, नॉट इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स। हेल्दीफाई मी अगर एप्स का आपने पढ़ा हो, कि पहले था कि आप वो ऐप को सब्सक्राइब करो, वो आपको डाइट बना के देते थे, आपको क्या खाना है, कब खाना है। अब क्या करते हैं कि मैं जो खा रही हूँ उसमें कितने कैलोरीज हैं, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे मैं पोहा खा रही हूँ और मे बी आई एम हैविंग पूरी भाजी। ओके, सो मैं जब पूरी भाजी खा रही हूँ तो उसमें मैंने देखा आलू की सब्जी मैंने एक बाउल ली है, 4 पूड़ियाँ हैं, तो मैं डालूंगी एक पूड़ी में कितनी कैलोरीज होती हैं, एक मैं जितनी सब्जी ले रही हूँ उसमें कम से कम एक बॉइल पूरा आलू आया होगा, कितनी होती है, देन आई विल कैलकुलेट। अभी हेल्दीफाई मी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या किया है, आप सिर्फ उस रेसिपी, उस फोटो खींचो, अपलोड करो, वो ऑटोमेटिकली काउंट करके आपको कैलोरीज बता देता है। और तो और ये भी बता देता है कितने कार्ब्स हैं, कितने फैट है और कितना प्रोटीन, हाउ मेनी कैलोरीज डज दिस कंटेन्स। सो हाउ इट डज इट, बिकॉज उसको हमने इतना डेटा फीड किया हुआ है कि आटा है तो रोटी है तो पूरी है तो कितना होता है, आलू कितना होता है, ग्रेवी कितना होता है, उस डेटा के बेस पे वो एनालाइज करके इमीडिएटली बता देता है कि इस पर्टिकुलर एक प्लेट रेसिपी में कितने कैलोरीज है। सो ऑल यू हैव टू डू इज फीड द डेटा। जितना ज्यादा डेटा होगा उतना अच्छा एनालिसिस और उतना अच्छा हमको क्या कहते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं चीजों को, और उतना ज्यादा एक्यूरेट हम ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस एनालिसिस और डाइट को बना सकते हैं। ओके, इफ यू गो फर्दर, आई मीन आप जब हम कहते हैं ना बायोमैकेनिकल एनालिसिस करते थे पहले, हम ना कैमरा से पहले फोटोज खींचते थे, फिर हमने वीडियोस बनाने शुरू किए और उसको हम फिर स्लो मोशन में देख देख के हम उसको एनालिसिस करते थे कि इसका आर्म एक्शन गलत है, इसका ये गलत है, इसका वो गलत है, इसका ये सही है। अब आप एक इमेज देख रहे हो स्क्रीन पे, राइट। आजकल क्या होता है, आपने सिर्फ कैमरास विद सेंसर
आपने इंस्टॉल किए हुए। अब वो सेंसर्स एथलीट ने पहने हुए, कैमराज आपने थोड़े ग्राउंड पे लगाए हुए और वो खेल रहा है अपना नेचुरल गेम, उसको रुकने की कुछ करने की जरूरत नहीं। बाद में आपके पास इस तरह का डेटा आता है जहाँ पे आपको ऐसे हर चीज दिख जाती है, जिसके बेस पे आप एनालिसिस कर पाते हो कि उसका पोजीशन, उसका स्किल कितना अच्छा है, कैसा है। और एक काम कर सकते हो, सपोज एज आई सेड मुझे विराट कोहली का रिप्लेसमेंट चाहिए, तो मुझे क्रिकेटर मिला है, उसको मैंने खेलने बोला और उसका ये सारा मैंने एनालिसिस किया, कुछ कम से कम आधे घंटे के गेम का, जितने भी शॉट्स उसने मारे। उसके बाद इमीडिएटली अगर आपके पास विराट कोहली का डेटा है, दिस डेटा कैन ऑल्सो बी कंपेयर्ड विद दिस डेटा एंड कैन सेट कि कितना सिमिलर है और कितना डिफरेंट है। काइंड ऑफ एनालिसिस कैन बी डन, बट ऑफ कोर्स यू नीड दैट काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर, यू नीड दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज। और उसके लिए एआई में एक अलग ब्रांच है, जैसे मेडिसिन में स्पोर्ट्स मेडिसिन, अब ऐसे ही टेक्नोलॉजी में स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी करके एक अलग पूरा फील्ड डेवलप हो रहा है, राइट। उसके बाद अगर हम देखें, देन कम्स कोचेस को क्या फायदा है इससे। देखिए, आप कितना भी एआई ले आइए, ह्यूमन टच को हम हटा नहीं सकते कंप्लीटली। कोच विल ऑलवेज बी देयर। कोच को लेकिन इसका इस्तेमाल करना है टू मेक इट्स हिज कोचिंग इवन मोर एफिशिएंट। उसके लिए क्या क्या फायदा है, जैसे मैंने आपको बताया, इट बिकम्स इजी फॉर अ कोच टू आइडेंटिफाई द स्पोर्ट्स टैलेंट व्हेन ही हैज दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विद हिम, जहाँ पे वो डेटा को क्वांटिफाई कर सकता है और उसके बेस पे बेस्ट प्लेयर्स को सेलेक्ट कर सकता है। और वो कोचेस सिर्फ वो प्लेयर्स जो होते हैं वो सिर्फ उनकी उस दिन की प्रेजेंट के बेस पे नहीं असिस्ट किए जाते, डेटा के साथ साथ एक कोच उस प्लेयर का आज का प्रोग्रेस, आज का परफॉर्मेंस कैसा है, और प्लस अगर हमने इसको सेलेक्ट किया एज अ टैलेंट, तो आने वाले 5 साल में इसका परफॉर्मेंस का कितना ग्रोथ हो सकता है, वो भी हम एआई की सहायता से देख सकते हैं। और क्योंकि कई बार क्या होता है, आज वो प्लेयर अच्छा खेल रहा है बट आने वाले 5 साल में वो उससे ज्यादा बहुत ज्यादा बेटर नहीं कर पाता, राइट। बट अगर वो हमें पहले से ही पता है तो उसकी जगह हम उस व्यक्ति को लेंगे जो आगे जाके 5 साल में और इम्प्रूव कर सकता है। सो दैट कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ एआई। फिर जो भी वो ट्रेनिंग बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, माइक्रोसाइकिल, मीजोसाइकिल्स, मैक्रोसाइकिल्स, जो भी, उसको प्लान करने में और इम्प्लीमेंट करने में भी इन एप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उसके बेस पे वो थोड़ा सा और उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आप अगर ट्रेनिंग बना रहे हैं, बनाते बनाते उसको अगर आपने मैच किया प्लेयर के इससे, कभी कभी वो ये भी दिखा सकता है कि इट कैन बी एन ओवर ट्रेनिंग फॉर अ प्लेयर, इट कैन कॉज इंजुरी रिस्क, कई सारी चीजें। और इस ट्रेनिंग के लिए फिर उसको न्यूट्रिशन कैसा चाहिए होगा, ऑल दैट कैन बी यूज्ड वाइजली with the help of coaches and the artificial intelligence। फिर वो प्लेयर्स को उनकी पोजीशन वाइज एनालिसिस के हिसाब से रोल दे सकता है कि आप फॉरवर्ड खेलोगे, आप अटैक करोगे, आप डिफेंड करोगे, आप क्या करोगे, राइट। और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करते टाइम उनको स्कोर दे सकता है। सबसे बेस्ट चीज है, सब्जेक्टिव जजमेंट से ज्यादा अच्छा है वो ऑब्जेक्टिव जजमेंट्स कर सकता है, सब्जेक्टिव पैरामीटर्स का, राइट। सोचो, चक दे मूवी देखी होगी आपने, काफी बच्चों ने देखी होगी। उन्होंने तो खैर से एआई के हिसाब से तो नहीं दिखाया, तो उन्होंने क्या दिखाया कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम हो रहा है या उससे पहले जो वो टीम के साथ खेल रहे थे, गेम के बीच में उन्होंने स्ट्रेटेजीज चेंज की थी कि इस प्लेयर को ले आओ, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। क्यों? क्योंकि कोच वहां बैठा था और वो प्लेयर्स को ऑब्जर्व कर रहा था और उसके बेस पे वो स्ट्रेटेजीज को चेंज कर रहा था। ऑब्वियसली इसको टाइम लगता है, बट आजकल ये चीजें सॉफ्टवेयर से हो जाती हैं। आपने सिर्फ वो कैमराज ऑन किए हुए हैं, उसको रियल टाइम डेटा ले रहा है, क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है, और वो उसको उस हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करता है कि ये प्लेयर थक गया है, इसका फटीग लेवल ज्यादा हो रहा है, इसको टाइम आउट में बाहर ले लो, किसी और को भेज दो 10 मिनट के लिए। ऑल दैट कैन बी डन विद द यूज ऑफ डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमें अपोनेंट, और पता है इसमें एक हम बोलते हैं प्रिडिक्शन एनालिसिस। आपके पास जब बहुत सारा डेटा होता है ना, तो उसके बेस पे आप प्रिडिक्ट कर पाते हैं। आज जब मैचेस होते हैं तो वो प्रिडिक्ट करते हैं कि कितने % चांसेस है कौन सी टीम जीतेगी। वो ऐसे कोई वहां ज्योतिषी नहीं बैठा है, जो डेटा उनके पास है उस स्टेडियम का, उन टीमों का, उसके बेस पे वो प्रिडिक्ट करते हैं, राइट। अब ऐसा ही क्या होता है जब अपोनेंट्स खेल रहे हैं और अपोनेंट के पहले मैचेस का सारा रिकॉर्डिंग्स हमारे पास है, डेटा हमारे पास है, तो जब वो मैच खेल रहा है तो कई बार उस अपोनेंट्स की डेटा के साथ साथ हम ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि उसका स्ट्रेटेजी क्या चल रहा है, और उसकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम हमारा काउंटर स्ट्रेटेजी प्लान कर पाते हैं। सो दैट कैन ऑल्सो बी डन ड्यूरिंग द गेम, पोस्ट गेम एनालिसिस। आजकल आप देखते हो ना, गेम एनालिसिस इज अ बिग जॉब। आजकल वो भी एक जॉब है, लोग उसकी भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसके भी कोर्सेज हैं। मैच एनालिस्ट बन रहे हैं, और मैच एनालिस्ट वो हैं जो खुद कभी प्लेयर नहीं रहे, बट दे नो हाउ, दे नो द गेम, दे हैव नॉट प्लेड इट बट दे नो द गेम, राइट। तो पोस्ट गेम एनालिसिस वगैरह जो अपन बोलते हैं ना एक्स्ट्रा इनिंग्स वगैरह में होता है,
मैचेस के बाद, दैट इज देयर। और रियल टाइम फीडबैक प्लेयर को भी मिलता है, कोचेस को भी मिलता है। तो ड्यूरिंग द गेम अगर कुछ स्कोप है चेंजेस करने का, स्ट्रेटेजीज का, प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट करने का, दैट अपॉर्चुनिटीज आर मोर विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि आप पॉस्चर्स करेक्ट कर सकते हैं, जैसे आजकल योगा है, एवरीबडी यू नो दे, आजकल एक प्रॉब्लम क्या हो गया है कि हम ना थोड़ा सा मे बी मेक इट मोर इकोनॉमिकल के लिए या किसी के लिए भी हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने लगे बजाय कि एक्सपर्ट्स के। हम गूगल पे जाते हैं, टाइप करते हैं क्या करना है, ये करना है, हम ये कर लेंगे। तो सबके सब मैं तो उनको बोलती हूँ व्हाट्सएप और गूगल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स। तो अब क्या, मुझे योगा करना है, मैंने देख लिया सामने वो, मैं एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ आपको। योगा या कोई भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज जब आप करते हो, अगर आपका पोस्चर गलत है तो जो उसका इफेक्ट होना चाहिए उसकी जगह उसका काउंटर इफेक्ट भी हो सकता है। सो क्या करते हैं, पोस्चर सही होना बहुत जरूरी है। पोस्चर कब से होता है, जब आप प्रैक्टिकली उसको किसी कोच के अंडर सीखते हो। बट हम क्या करते हैं, हम देखते हैं गूगल, हम देखते हैं यूट्यूब और हम उसको करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। बट मुझे जिम नहीं जाना, मेरे पास 12,000-13,000 रुपए नहीं है जिम को देने के, तो क्या मैं एक्सरसाइज नहीं करूं? कर सकते हो। आजकल सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ डिटेक्टिंग एप्स आ गए हैं या सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। तो आप एक परफॉर्म करो एक आसन को और वो उसको पूरा एनालिसिस करता है और आपको बताता है कहाँ पे गलत है, कहाँ पे सही है। तो सेल्फ असेसमेंट आप कर सकते हो अपने पोस्चर्स का। और अगर आपके साथ कोई एक्सपर्ट है, कोचेज हैं, तो वो भी इस टेक्नोलॉजी को यूज करके आपके पोस्चर्स को एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका पोस्चर कहाँ गलत है और कहाँ आपको सही करना है। सो फ्यूचर विल बी लाइक दिस, वेयर हम बोलते हैं ना, बॉलिंग मशीन जब आई थी वॉलीबॉल में, क्रिकेट में, तो हमें लगा था वाह वाह क्या मजा आ गया। अब वो कंटिन्यूस बॉल फेंकता रहेगा, चेंज करता रहेगा, बैट्समैन की हर तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। वॉलीबॉल में भी मशीन आ गई, वो बॉल देगी और आपको मारना है, वो बॉल देगी और आपको मारना है। सो ये तो चलो मैनुअल हो रहा था मशीन से, बट अब जो इस तरह की ट्रेनिंग होगी, यू विल बी प्लेइंग अगेंस्ट द रोबोट्स, जो कि आपके बॉलिंग मशीन्स आपका गेम नहीं जानती, वो आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं जानती। बट जब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला रोबोट आपके अपोनेंट में खड़ा होगा, उसके अंदर आपके गेम का डेटा फीड किया होगा, ताकि वो आपको वही शॉट्स दे जो इसको आपको दिक्कत आ रही है और आपको वही प्रैक्टिस कराए जो शॉट्स आपके गलत है। सो उस तरह का एक एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ AI इन द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। देन ऑब्वियसली वीडियो एनालिसिस पहले भी होता था, बट अब जो वीडियो एनालिसिस होगा वो बहुत अलग तरीके का होता है। बहुत सारे पैरामीटर्स, पहले हम 10-12 पैरामीटर्स के बेस पे एनालिसिस कर सकते होंगे, आज हम 100-200 पैरामीटर्स के बेस पे एनालिसिस कर सकते हैं। और नॉट ओनली जस्ट एनालिसिस, इट कैन बी साइमल्टेनियसली बी कंपेयर्ड विद द अदर पीपल, दैट इज ऑल्सो डन। वी कैन वेयर द डिवाइसेस जिसके बेस पे डेटा मिलेगा, सेंसर्स हैं, और हम उसको, और इससे हमें फायदा क्या होता है, हम एथलीट्स को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, उसकी डाइट, ओवरऑल मैनेजमेंट, उसका डाइट, उसका ट्रेनिंग, उसका इंजुरी प्रिवेंशन, उसका इक्विपमेंट, उसका कैसा प्लेसमेंट है, किस तरह का फुट वो डालता है, उसको किस तरह का शूज ठीक रहेगा, उसको किस तरह का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ठीक रहेगा, एवरीथिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर्स। बट येस, कुछ सॉफ्टवेयर्स अभी इन्फेंसी में है, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुके हैं। ये जो मैं कैटापल्ट आपको बता रही थी वो इस तरह का दिखता है, जिसको आप पहन सकते हैं। और अब तो इसका और एक और फाइन वर्जन आ गया जिसमें सिर्फ बैंड है, आप सिर्फ बैंड लगा लेंगे, उससे भी वो टाई हो जाता है। ओके, एज आई सेड, आपका स्ट्रेस लेवल, ओवर यूज लेवल देख के वो इंजुरी रिस्क प्रिडिक्ट कर सकता है। उसका एक सिएटल शीहॉक्स है, ये एक टीम है, ये रग्बी जिसको हम फुटबॉल बोलते हैं अदरवाइज, बट हम जिसको यहाँ पे रग्बी बोलते हैं, बट इट्स अ फुटबॉल, इट इज कॉल्ड फुटबॉल इन अदर कंट्रीज। तो वहाँ की एक अमेरिका की टीम है ये सिएटल सीहॉक्स, ये इन्होंने सबसे पहले यूज करना शुरू किया था MS सॉफ्टवेयर का, और उसके हिसाब से उन्होंने प्लेयर्स के फिटनेस को ट्रैक करते थे। जब उनको लगता था कि उसका लेवल थोड़ा डाउन हो रहा है और यहाँ पे उसको इंजरी हो सकती है, उसके बेस पे ना उनका सॉफ्टवेयर वो प्रिडिक्ट करता है इंजुरीज को। और जब ऐसा लगता है कि प्रिडिक्शन हो रहा है, उस टाइम पे उस प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाता है, उसको रुकाया जाता है ताकि उसको इंजुरी ना हो, उसको उस पोटेंशियल रिस्क को ध्यान में रखते हुए उस इंजुरी के माहौल से उसको निकाला जाता है। So that is how it is used for players and coaches. अब आता है ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया। इसमें तो इतनी सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अब जो आप अपने पेरेंट्स को कभी पूछना, जब वो क्रिकेट मैच देखते थे और जो अब आप क्रिकेट मैच देखते हो, दैट एक्सपीरियंस हैज चेंज 360 डिग्री। उनको एक बॉल का बहुत दिखता था तो रिप्ले दिखता था बस,
आपको वो बॉल कहाँ जा सकती थी, कहाँ गई है, किधर से आई है, कहाँ पे जाएगी और कितनी बार ऐसी फेंकेगी, उस प्लेयर ने कितनी बार ऐसी बॉल को फेंका है, उस प्लेयर ने सचिन के अगेंस्ट इस बॉल को कितनी बार फेंका है, सब कुछ डेटा आता रहता है, कंटिन्यूअस आता रहता है, एंड यू आर कंप्लीटली एंग्रॉस्ड इन दैट टाइम. आपको एक भी मिनट के लिए बैठने नहीं देते, कंटिन्यूअस आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ देख रहे हो, कितने परसेंट में करेंगे, किसने क्या बोला है, और आपका क्या कहते हैं, ये प्लेयर इस तरह से खेला तो कितने रन बना सकता है, ये टीम कितने रन बना सकती है, इस गेम पे, इस ग्राउंड पे, इस टीम के साथ ज्यादातर कौन जीता है, पहले बैटिंग किसने की थी, बाद में बैटिंग किसने की, कितना सारा डेटा आपको आता रहता है, मिलता रहता है, बिकॉज दिस डेटा हैव बीन फेड इन द सॉफ्टवेयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज जस्ट डूइंग द कैलकुलेशन एंड प्रेजेंटिंग इट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन्स, राइट. फिर कैमरा एंगल्स, अब आप देखोगे तो क्रिकेट में ऊपर भी एक वो ड्रोन, एक वो 4 वायर से ऐसे बड़ा सा कैमरा लगा रहता है जो पूरे टाइम मूव करता रहता है, एंड यू हैव अ बेटर व्यू. और एक ही शॉट को कितने कैमरा एंगल से रिकॉर्ड किया जाता है और उसका जो बेस्ट पॉसिबल व्यू है वो आपको दिखाया जाता है, राइट. अब कमेंट्री तो गवास्कर कर रहे हैं, वो हिंदी में कर रहे हैं, रवि शास्त्री कमेंट्री कर रहे हैं, वो इंग्लिश में कर रहे हैं, फिर सिद्धू पाजी आ गए तो उन्होंने पंजाबी में कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया. अब आधे लोग को तो समझ ही नहीं आ रहा है. अभी अगर आज मैं अभी मैं बोलते बोलते एक लाइन बंगाली में बोल दूं, इमीडिएटली सबका टेंशन मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में सुनने का जो प्लेजर है वो बहुत अलग होता है, राइट. आई वर्क इन महाराष्ट्र, सो जब मैं नई नई आई थी मेरी मराठी इतनी अच्छी नहीं थी, अभी आई हैव अ क्वाइट डिसेंट कमांड ओवर मराठी, बट जब मैं नई नई आई थी तो सब तरफ, स्पेशली यूनिवर्सिटी में, यू नो द वर्किंग लैंग्वेज इज मराठी, सो पूरे टाइम मराठी होता रहता था. अचानक से कोई आया नॉर्थ से, उसने बोला और मैम आप कैसे, वो हिंदी वाज लाइक यू नो म्यूजिक टू माय ईयर्स. सो अब क्या होता है, वो कमेंट्री जो शास्त्री जी बोल रहे हैं उसको इमीडिएटली आपके रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके इमीडिएटली आपको उस रीजनल लैंग्वेज में साइमल्टेनियसली सुनाई देता है. उसका वेट नहीं करना पड़ता है, वो तुरंत आपको सुनाई देता है और आपको नए कमेंटेटर्स की भी जरूरत नहीं है, वही कमेंट्री को वो ट्रांसलेट करके आपको सुना देते हैं. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट. सब टाइटल्स आते रहते हैं रनिंग, आपको अभी भी आप ओटीटी पे जब कुछ देखते हो आप खाली चेंज करो, जो भी आ रहा है उसका सबटाइटल आपकी खुद की भाषा में आ सकता है, हिंदी में, बंगाली में, कन्नड़ में, तमिल में, उसका सबटाइटल आ जाता है, राइट. इवन यू कैन चेंज द ऑडियो वॉइस ऑल्सो, तो सेम कैन बी डन ड्यूरिंग द ब्रॉडकास्टिंग, राइट. और इसका जो मीडिया कवरेज है उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, ऑटोमेटेड जर्नलिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ. एक ना एकाउस्टिक डेटा होता है, एकाउस्टिक का मतलब होता है रिलेटेड टू हियरिंग. स्टेडियम में जब सेंसर्स लगे हुए हैं, आजकल आप देखना वो ना डेटा दिखाता है, अकाउस्टिंग डेटा डेसिबल्स में, कि जब धोनी ने छक्का मारा है तो कितना हल्ला हुआ है स्टेडियम में, वो डेसिबल्स में रिकॉर्ड करके. अब ये नया शुरू हुआ है, अभी पिछले 2-3 सीरीज से ही आ रहा है ये, और ये सॉफ्टवेयर सबसे पहले टेनिस में यूज हुआ था, लॉन टेनिस में, और ये आई थिंक सो इंटेल ने ही बनाया था ये वाला सॉफ्टवेयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. उन्होंने क्या किया था, टेनिस मैच में इसको सबसे पहले उन्होंने यूज किया, आई थिंक सो विंबलडन में यूज किया था, और उस एकाउस्टिक डेटा का उन्होंने इस्तेमाल किया कि पूरे मैच को रिकॉर्ड करते रहे, तो वो ग्राफ में ना ऐसे ऐसे आता था, तो जहां पे सबसे ज्यादा हाई हल्ला हुआ है, शोर हुआ है ग्राउंड में, मतलब उस समय कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ होगा मैच में, तो वो हाई पॉइंट्स को सॉफ्टवेयर ने पिक किया, उस एकाउस्टिक डेटा को उस समय जो कमेंट्री हुई उससे पिक किया, उस समय जो गेम में हुआ उससे पिक किया, और इमीडिएटली मिला के एक रिपोर्ट बना दी, हाइलाइट्स ऑफ द मैचेस. आपको एडिट नहीं करना पड़ेगा कि ये बॉल दिखाऊं ये नहीं दिखाऊं, वो इमीडिएटली एकाउस्टिक लेवल के बेस पे उन्होंने ऑटोमेटेडली बना दिया. अब क्या हो गया, अब आपको बैठ के, पहले ना डेटा कलेक्ट होता था, रात भर वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बैठ के रिपोर्ट लिखते थे अच्छे अच्छे शब्दों में, फ्लावरी वर्ड, और सुबह बढ़िया सा हेडिंग होता था, और फिर आप सुबह पढ़ते थे उसके रिपोर्ट्स के बारे में. अब आपको वो रिपोर्ट्स, वो सारा डिटेल ऑफ दैट मैच तुरंत मिलता है, मैच खत्म होने के तुरंत आपके हाथ में होता है, in whichever language you want. That is automated journalism, and that whole thing has changed the sports media and sports journalism. और सिर्फ मीडिया यहीं तक नहीं है, आप देखो सोशल मीडिया के इमीडिएटली पेजेस बदलते रहते हैं, प्लेयर्स के फोटो आना, उनका कितना सपोर्ट है टीम को वो क्वांटिफाइबल डेटा में आना, ड्रीम 11 में आपका अपना दाव लगाना, ये सारा चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा से कनेक्टेड है, ताकि वो उस तरह का यू नो एंगेजमेंट आपसे ले पाए. एंड विच ब्रिंग्स टू माय नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इट, विच इज
fan engagement, smart stadium and real time experience. अब फैन एंगेजमेंट क्या होता है? फैन को आप कितना अच्छा बांध सकते हैं. पहले ना लोगों के पास पैशन था, जैसे कि क्रिकेट का पैशन है. मुझे याद है 5 डेज भी जो टेस्ट मैचेस होते थे, हमारे पेरेंट्स लोग बहुत ही पेशेंस से देखते थे. फिर वनडे आ गया क्योंकि लोगों के पास उतना टाइम नहीं था, तो वनडे में ज्यादा मजा आने लगा. अब T20 और कहीं कहीं पे तो यूके में 10 ओवर्स के 5 ओवर्स वाले मैचेस भी होने लगे, क्योंकि लोगों को एक्साइटमेंट चाहिए, उनके पास पेशेंस नहीं है. क्लासिक है, बट अभी क्या ये जो जनरेशन है इनको मजा चाहिए, एड्रेनलिन रश होना चाहिए, तुरंत अच्छा फास्ट ऐसा चाहिए. तो फैन को कैसे एंगेज किया जाए? उनके एक्सपीरियंस को आप जितना एनहांस करेंगे, उतना फैन आपके गेम्स को देखेंगे और उतना आपके गेम्स की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी. फैन को एंगेज करने का तरीका क्या है कि उनको कस्टमाइज एक्सपीरियंस दिया जाए, राइट? पहली बात तो रेफरी और जो ऑफिशिएटिंग होती है वो एकदम फ्लॉलेस होनी चाहिए. अब अगर आज आप देखो गेम्स में थर्ड अंपायर है, थर्ड रेफरीज हैं, फोर्थ रेफरीज हैं, विच आर सिटिंग विद द 4 और 5 कंप्यूटर्स, जहां पे उनको हर एंगल से एक एक स्किल को देखने का मौका मिलता है और वो सबसे सही डिसीजन ले पाते हैं. ये पहले क्रिकेट में देखा होगा, अब ऑलमोस्ट हर गेम में आ गया. हॉकी में देख लो, इसमें देख लो, ओलंपिक में, सो दैट जितना फेयर हो सके उतना उस गेम को फेयर किया जाए. जब गेम फेयर होता है तो ऑडियंस को ज्यादा मजा आता है देखने में. अगर एक अनफेयर डिसीजन होता है तो फिर इंटरेस्ट चला जाता है, राइट? अब ना एक ऐसे स्मार्ट एडियम्स बनाए जा रहे हैं, स्टेडियम. जापान में तो काम भी शुरू हो गया, चाइना जापान में, जहाँ पे जिस सीट पे आप बैठेंगे और आप किसी भी सीट पे बैठो, किसी भी एंड होता है ना, साउथ एंड, वेस्ट एंड, जहां पे भी आप बैठो, जिस भी स्टैंड में आप बैठो, आप वहां पे कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको कौन से एंगल का व्यू चाहिए मैच में. पूरा वहां पे स्क्रीन है. और तो और कहीं कहीं पे तो वर्चुअल रियलिटी के ग्लासेस दिए जाते हैं, दैट यू फील दैट यू आर स्टैंडिंग इन द स्टेडियम एंड वॉचिंग द मैच. इस तरह की भी व्यवस्था की जाती है. देन देयर आर सर्टेन एप्स कॉल्ड चैटबॉट्स, राइट? एक ऐप है और ऐसे कई एप्स हैं जो आपके साथ कॉन्स्टेंटली चैटिंग करते हैं ड्यूरिंग द मैच. यू डोंट फील अलोन इवन इफ यू हैव गॉन अलोन टू वॉच दैट मैच. आप बोलोगे ओके दिस प्लेयर, वो उस प्लेयर की इंफॉर्मेशन देगा, उस प्लेयर के बारे में आपको बताएगा, और फिर चैटबॉट्स आपसे चैट करेगा. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द स्कोर ऑफ दिस मैच? आप उसको कुछ बता रहे हो, वो आप यू फील एज इफ यू आर सिटिंग विद अ फ्रेंड एंड टॉकिंग टू समवन. स्टेडियम में बैठे बैठे आप स्नैक्स ऑर्डर कर दोगे, आपके टेबल पे डिलीवर हो जाएंगे. सो चैटबॉट्स इज अनदर थिंग. और इसके बेस पे जो भी आप इंफॉर्मेशन जो आप बात कर रहे हो उस चैटबॉट से, वो डेटा उस ऐप में स्टोर होता है, और नेक्स्ट टाइम जब आप मैच देखने आते हो आपको उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके सामने वो फ्लैश करता है. आपको वो जो एक्सपीरियंस है वो कस्टमाइज लगता है. एग्जाम्पल में देखते हो, आज आप अमेजोन पे जाओ, सेल चल रही है, राइट? ग्रेट फेस्टिवल, इंडियन ग्रेट फेस्टिवल सेल. आपने डाला कि चलो मोबाइल चेंज करते हैं, देखते हैं आईफोन 16 का क्या रेट है, अभी लॉन्च हुआ. आपने आईफोन 16 डाला, फिर आपने देखा अच्छा ठीक है चलो बाद में देखते हैं, आपने बंद कर दिया. उसके बाद आप मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टैब पे जो भी इंटरनेट का विंडो खोलोगे, इट विल पॉप अप अबाउट आईफोन 16, आईफोन 16, आईफोन 16 और मे बी सिमिलर डिवाइसेस. नॉट ओनली दैट, अगर आप मोबाइल में कोई गेम खेल रहे हो, गेम के बीच में ऐड आता है, वो ऐड भी आईफोन 16 का ही आ रहा होगा, बिकॉज उसने वो डेटा लिया और आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो नहीं भी चाहिए तो भी वो फेंकता रहता है. तो जो भी आप टाइप करते हैं, एक चीज हमेशा याद रखना, whatever your information you type or enter on social media or any of these platforms can never be erased completely. Once it is there, it is already stored at 100 different platforms. आपको लगता है ना मैंने डिलीट कर दिया मेरा पोस्ट, वो डिलीट हो गया, वो ऑलरेडी आपके डिलीट करने से पहले 75 जगह पे स्टोर हो चुका है. सो आपका डेटा यही होता है. आपके इस एक्सपीरियंस को कस्टमाइज बनाने के लिए ये जो फॉर्म्स हैं, अमेजॉन्स हैं, ई कॉमर्स फॉर्म्स हैं या बाकी के फॉर्म्स हैं, ये उसको यूज करती हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे फैन लाइव पोल करते हैं, कौन सी टीम जीतेगी, अरे इतने प्लेयर्स ने ये बटन दबाया, उनके हिसाब से ये जीतेगा. अब 10 ओवर के बाद ये पोल अलग रिजल्ट दिखा रहा है, अलग प्रेडिक्शन दिखा रहा है. सो लाइव पोल्स हो सकते हैं. देन आप मैच का प्रेडिक्शन, आउटकम प्रेडिक्ट कर सकते हो, कौन जीतेगा. आजकल तो होने लगा है, आजकल तो बहुत, बैडमिंटन में भी, नॉट ओनली इन क्रिकेट, बैडमिंटन में, लॉन टेनिस में ये आउटकम प्रेडिक्शन शुरू हो गया है. और वेन्यूज जो है वो स्मार्टर बन गए. पहले ऐसा चल रहा था जब कोविड नहीं आया था कि टोक्यो ओलंपिक में जो जापान जो है वो डिफरेंट 5G नेटवर्क देने का प्लान उस टाइम पे था, और उन्होंने डिसाइड किया था कि हम कुछ भी पेन पेपर नहीं रखेंगे. मींस जो भी टिकट खरीदेगा, जिनको भी पासेस मिलेंगे, उनकी वर्चुअल स्कैनिंग होकर डेटा स्टोर हो जाएगा, और जब आप स्टेडियम में एंटर करोगे, ताकि क्यों ना हो,
वहां पे कैमराज होंगे जो आपको सेंसर्स होंगे जो आपके फेशियल रिकॉग्निशन करेंगे और आपको अंदर भेजते जाएंगे, आई रिकॉग्निशन और फेशियल रिकॉग्निशन। आजकल आपके इंस्टीट्यूट में भी होगा शायद बायोमेट्रिक, आपको थंब लगाने की भी जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपने ऐसे फेस करो, वो आई रिकॉग्निशन करता है और आपको प्रेजेंट मार्क कर देता है। तो इस तरह का रिकॉग्निशन देवर प्लानिंग इन द स्टेडियम। तो स्टेट जो वेन्यूज है वो भी स्मार्ट होते जा रहे हैं। इस तरह के स्मार्ट स्टेडियम्स में आपको खेलने का मौका मिलेगा। और सोशल मीडिया ने तो पूरा गेम ही बदला हुआ है। हर एक टीम के मैच, अब तो सोशल मीडिया मैनेजर अपॉइंट करने पड़ते हैं जो आपकी टीम से रिलेटेड एक ना वेव बना के रखता है, एक ट्रेंडिंग करके रखता है आपकी टीम को, ताकि ना आपको ज्यादा से ज्यादा फैंस का सपोर्ट मिले। आप देखोगे ना क्या होता है, हार्दिक पांड्या को कैप्टेंसी दी गई मुंबई इंडियंस की, अचानक से जो रोहित शर्मा की जो मैनेजर्स हैं, ब्रांड मैनेजर्स, उन्होंने इस तरह के, आप देखोगे उस समय इंस्टाग्राम पे वही रील आ रहे थे जहां पे ना रोहित शर्मा को दुखी दिखाया जा रहा है और हर जगह हार्दिक पांड्या की मतलब कमियां दिखाई जा रही हैं। ये पूरा क्रिएट किया जाता है, इट इज ऑल प्लान्ड, इट इज ऑल स्क्रिप्टेड, एंड देन यू नो इट कम्स फ्लैशिंग उस टीम के सपोर्ट के लिए। फिर अभी आपने देखा होगा बीच में ना सबको पता है कि सचिन गया तो विराट कोहली बनाया गया था, सोशल मीडिया ने बनाया था। अब अगर आप देखोगे बहुत सारे यंग प्लेयर अच्छा खेल रहे हैं, बट एक शुभमन गिल के आसपास एक अलग ही सेंसेशन क्रिएट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत एकदम से बहुत अच्छा खेलने लगा या उसके ऐसा और कोई नहीं खेल रहा है, बट अगेन ये टीम ये ब्रांडिंग करती है प्लेयर्स की, और उस ब्रांड को इतना पॉपुलर किया जाता है कि इट इन्फ्लुएंस द सेलेक्टर्स। और ये सब हो रहा है और ये सब स्क्रिप्टेड है, ये सब चल रहा है, कभी कभी फेयर भी है अनफेयर भी है, बट दिस ऑल इज हैपनिंग। तो सोशल मीडिया इज अलग, क्योंकि फैन सपोर्ट मिलता है, फैन सपोर्ट प्लेज अ वेरी डिफरेंट। पहले था कि होम ग्राउंड सपोर्ट ही बहुत बड़ी बात होती थी, हमें होम ग्राउंड सपोर्ट है, हमारे देश में मैच हो रहा है, हमारे ग्राउंड पे मैच हो रहा है। अब ये पूरा चेंज हो गया है, होम ग्राउंड का एडवांटेज होगा होगा, बट जो फैन एंगेजमेंट है आज सोशल मीडिया पे दिखता है, वो फैन सपोर्ट कि कैसे आप सपोर्ट कर रहे हो। सो दैट ऑल्सो हैज चेंज्ड कंप्लीटली विद द invasion of artificial intelligence. Further when we go but so this is how the chatbot looks. आप कुछ इन्फॉर्मेशन फीड करते हो, वो जो आपका AI असिस्टेंट है वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है, आप मैच डिस्कस कर रहे हो, आप प्लेयर डिस्कस कर रहे हो, आप सब डिस्कस कर सकते हो उस पर। और ये कुछ इस तरह का भविष्य में आपको स्मार्ट स्टेडियम देखने को मिल सकता है, जहाँ पे आपकी इन्फो, बट अगेन बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाट काइंड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन यू आर पुटिंग देयर। आपको शायद पता नहीं होगा, जब आप एक बार कुछ खरीदते हो, राइट, नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा कोई ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो, ऑलरेडी आपका डेटा वेटा, बैंक का कार्ड नंबर सब कुछ स्टोर है, नाम वाम, एक्सपायरी डेट, आपको सिर्फ CVV डालना होता है, आप डाल देते हो, ट्रांजैक्शन हो जाती है। अभी जब तक CVV है, आपका OTP है, काम चल रहा है। कल को अगर इसमें भी कुछ झोल हो गया तो त्राहिमाम है उसके बाद। सो टेक्नोलॉजी जितना वरदान है, उतना ही उससे समझ के और संभलने की जरूरत होती है, आपके डेटा को संभलने की जरूरत होती है। कई रिसर्च चल रही है और ये शायद अभी तक तो कहते हैं कि फिक्शन में ही है, बट जितना मुझे लगता है फिक्शन नहीं है, इसमें कुछ तो सच्चाई है। कि जो हम हमारे कैमराज ऑन रखते हैं, जब आप ना कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में कैमरा ऑन रख के आप फोटो खींच रहे हो, अचानक से आपका कॉल आया, आपका कैमरे का विंडो गया, आपने कॉल अटेंड किया, उस कॉल में कुछ काम था, आप घर पे चले गए, और आपका मतलब जब आप फोन खोल रहे हो, सामने कैमरा नहीं है, सामने व्हाट्सएप या फेसबुक कुछ भी है, बट वन ऑफ द विंडो में कैमरा ओपन है, और कई बार वो आपकी सारी रिकॉर्डिंग कर रहा है, आपका डेटा ले रहा है। सो कई बार इन चीजों के बारे में समझना बहुत जरूरी है, संभलना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा डेटा जो है वो सुरक्षित नहीं है। और इसके अब सोचो आपकी वॉइस को अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमिटेट करने लग जाए, जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट कनेक्ट इट विद द चार्जर। सो फ्यूचर जो है वो रिस्की भी है।
ई स्पोर्ट्स, जिसको अभी ओलंपिक ने भी उसको रिकॉग्निशन दे दिया है, वेरी सून यू विल बी हैविंग स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑन द स्क्रीन। अलग अलग ई स्पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, अलग अलग गैजेट्स बनाए जा रहे हैं, अलग अलग गेम्स बनाए जा रहे हैं जिनका कंपटीशन होगा। उनको लगता है कि जब ये भी टेक्नोलॉजी इज वेरी मच पार्ट ऑफ द टीम, व्हाई नॉट टू इंक्लूड देम इन ओलंपिक्स। तो सून यू विल सी ई स्पोर्ट्स आल्सो एज अ कैटेगरी इन कंपटीशन इन ओलंपिक्स। देन देयर विल बी रोबो रेस। आप देखोगे कि कहते हैं कि जो कार होती है ना, फॉर्मूला 1 रेसेस होती है, उसमें आप देखोगे ड्राइवरलेस कार्स जो है वो कॉम्पिटिट कर रही है। इट इज मोर ऑफ अ कार कॉम्पिटिशन देन द ड्राइवर्स। देन देयर विल बी लॉट ऑफ वॉर बिटवीन द टेक्नोलॉजी। आज एक आया है, कल उसका एडवांस वर्जन आया है, हम कुछ यूज कर रहे हैं, अगला कोई और यूज कर रहा है। तो इट इज ह्यूमन परफॉर्मेंस से ज्यादा हम टेक्नोलॉजिकल परफॉर्मेंस पे ध्यान देने लगेंगे, विच शुड नॉट हैपन। तो इट कैन बी इन फ्यूचर मैन वर्सेस मशीन वाली सिचुएशन आ सकती है। बट येस, देयर आर पीपल जो कि इसके एथिकल यूज के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके लिए गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं, काफी काम किया जा रहा है, राइट। बट एट द सेम टाइम ये समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी इज नाउ इंडिस्पेंसिबल। आप उसको हटा नहीं सकते। कल को कोई नहीं कह सकता कि नहीं, कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेगा, बिना टेक्नोलॉजी के जो करना है करो। अब वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट इज सो मच इन our game, in our field, in our area, that now it is nearly impossible to think without technology. आज अगर मैं बोलूं आपके फोन से हम इंटरनेट हटा दें तो क्या क्या हो सकता है, सोचो आप। मतलब आप खुद ही 1 मिनट के लिए हमारा नेटवर्क आना बंद हो जाता है, हम रेस्टलेस हो जाते हैं। आज कोई बोल दे एयरटेल डाउन रहेगा, आज पूरा दिन आपका एयरटेल का नेटवर्क डिस्टर्ब है, पूरा दिन आप डिस्टर्ब रहते हो, बिकॉज वी आर सो डिपेंडेंट ऑन दीज टेक्नोलॉजीज इन नॉर्मल लाइफ ऑल्सो, फॉरगेट अबाउट स्पोर्ट्स। So it is here to stay. But yes, we have a big challenge to formulate the guidelines, or maybe also develop the software which can ensure the ethical use of these technologies, where it still doesn't overcross that line of human involvement in the sports. Okay, so threats है, human talent को हम ज्यादा देंगे कि आपके पास टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है, उसको ज्यादा महत्व देंगे। डेटा सिक्योरिटी इज अ बिग बिग थ्रेट। एज आई सेड, इलीगल ट्रेडिंग होती है डेटा की। सबसे महंगा आज की डेट में अगर कुछ है तो वो डेटा है। सोने से ज्यादा महंगा है, हीरे से ज्यादा महंगा आज की डेट में है तो वो डेटा है। और इन सॉफ्टवेयर का ईजी नहीं है, दे आर वेरी कॉस्टली, और इनका मेंटेनेंस भी उतना ही कॉस्टली है। तो क्या होता है, जिसके पास पैसा है वो तो अच्छा कर ले रहा है, उसके पास वो सॉफ्टवेयर है, जिसके पास नहीं है वो अभी भी पुराने मेथड्स पे। तो कहीं ना कहीं वो कंपटीशन थोड़ा अनफेयर भी होने लगता है। और कई बार इन सॉफ्टवेयर्स को रन करने के लिए यू नीड एक्सपर्ट्स, यू नीड सॉफ्टवेयर टेक जायंट्स और मे बी टेक एक्सपर्ट्स जो कि इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। और टेक्नोलॉजी ऐसी चीजें कभी भी धोखा दे देती है, तो उस समय इमरजेंसी में उन टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के लिए, उसके बैकअप के लिए वी नीड एक्सपर्ट्स। सो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स के लिए हमें थोड़ा सा, उसके लिए हमें थोड़ा कहते हैं ना सचेत रहने की जरूरत है। और एथिकल इश्यूज तो यस, दैट्स अ बिग बिग थ्रेट। एंड फॉर दैट आई थिंक सो अभी से ही जो भी सॉफ्टवेयर इनको बना रहे हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर को जो डेवलप कर रही हैं कंपनीज, उनको ये साइमल्टेनियसली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल, कि वो उसके साथ साथ मेक श्योर करे कि इनका एथिकल यूज हो। There are certain references which I have put here, and I have tried to share very basic about artificial intelligence, because इसमें बहुत कुछ है, and I would not mind saying that you actually need a person from the software engineering to deliberate more depth into it. और बाकी तो मुझे लगता है काफी लोग, आप लोग ऐसे चैट जीपीटी वगैरह यूज भी कर रहे होंगे, आप लोग चैट जीपीटी और ऐसे ऐप्स यूज भी करते होंगे। आजकल तो बच्चे असाइनमेंट भी चैट जीपीटी से कर ले रहे हैं, राइट। और मुझे अगर आपको वोट ऑफ थैंक्स बोलना है, सर ने बोला, मृत्युंजय सर को लास्ट मिनट में बोला नीता मैडम ने, आपको वोट ऑफ थैंक्स बोलना है, एंड ही वांटेड टू प्रिपेयर। इतना अच्छा मैडम ने मेरा इंट्रोडक्शन किया, तो उसको भी अच्छा सा वोट ऑफ थैंक्स चाहिए, वो चैट जीपीटी में डालेंगे। वोट ऑफ थैंक्स फॉर अ पर्सन हु स्पोक ऑन एआई इन स्पोर्ट्स। आपके पास 4-5 सैंपल आ जाएंगे, आप बस उसको पढ़ लो, आपको जो ठीक लग रहा है वो ले लो और आप कर दो। आजकल तो बर्थडे विशेस भी हम चैट जीपीटी से ड्राफ्ट कर लेते हैं, पर्सनलाइज। की एक लड़का है जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, जो बहुत एक्टिव है, थोड़ा सा नॉटी है, उसके लिए बर्थडे विशेस दो। आपको ऐसा लगेगा हाय इसने मेरे लिए कितने प्यार से ये लाइनें लिखी है, मतलब इट्स सो मी, इट इज सो, आई कैन रिलेट इट टू इट सो मच, बट इट इज ऑल चैट जीपीटी। एक लाइन जरूर बोलूंगी जो मैंने कहीं पढ़ी थी और बहुत एप्ट है, जो फ्यूचर चैलेंज जो है इस ह्यूमन काइंड के लिए, वो है नेचुरल स्टूपिडिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
So it has to be that people has to be more intelligent to fight with this artificial intelligence. So we have to work on natural stupidity first so that we can deal with the artificial intelligence. So thank you so much. And I'm open for people, those who have raised hands. So if they have anything to ask pertaining to the slides which I shared, I am happy here to share with you. Thank you, ma'am. I hope it was not too technical. I tried to mellow down a lot, keeping their graduates from physical education in mind. Thank you, ma'am, for such a nice and valuable information sharing with us. हम इस सेशन को ओपन करते हैं, पहले ही साइसेन लेंगे हमारे साथ पहले से मौजूद डॉक्टर अरुण कुमार उपल सर। सर आपको आज का ये लेक्चर कैसा लगा, और अगर कोई साइसेन है तो प्लीज बताइए। Excellent presentation. You have tried to explain the whole thing in a very simple manner. And I feel proud to be your teacher, when I see my own students doing so well. So it was a marvelous presentation. And you have touched all aspects of artificial intelligence. And congratulations for it. Thank you so much, sir. Hearing these words from you, you don't know what it means to us, because you always, I won't mind saying it again and again, have been such a huge inspiration, especially your sports training presentation in every conference. Trust me, I watch all of them, coding theories and all, and you have been, आपकी किताबों से हम पढ़ाते हैं, आपकी किताबों से हम पढ़ते हैं, and you saying even 2 words good for me, it means a lot. It means all to me, sir. Thank you so much for being there. Kumar, I write books only for the benefit of students. But they are amazing. You may not be aware that today I have 46 books in my name. Must be, sir. I'm not surprised. 46 books, and this is what I do now. I concentrate on writing so that students can get the latest knowledge. And I keep on modifying, keep on updating them so that new knowledge can be received by students. But I appreciate the way you have tried to present the topic artificial intelligence, and I'm sure those who are attending the course, they have got something new to understand what actually artificial intelligence is. Congratulations. Thank you, sir. Thank you, Coming sir. to the question, I just saw one question regarding the selection of the players. Ma'am, before we going to the question, another session was taken from Professor Porimal Devnath sir is there, Okay. former professor Jadavpur University. Okay. Sir, নমস্কার স্যার। আজকের এই আলোচনা নিয়ে যদি কিছু বলেন বা কোনো সাজেশন শেয়ার করেন আমাদের সাথে। Sir, please unmute yourself. So, at the very outset, I must congratulate the speaker. Such a difficult subject she has nicely presented, and in such a way that a layman like me also could understand a little bit of the matter. But whenever it comes to science and technology, it doesn't touch me. It goes over my head, because I am so poor in this area. I cannot just connect in so many ways. But some questions that have cropped up in my mind that I want to share. If there is the answer, I will be expecting the reply from the speaker also. My first hunch is, in my school days, I studied, whenever we used to compose something, the teacher asked to compose something on a particular matter, say science and technology, I used to come across a phrase like, science a boon or a curse. I am confused. And today's discussion on artificial intelligence has put me in more trouble to understand whether the application of science and technology in every sphere of our life is a boon or a curse. And I understand, and it is understandable to all,
that the science and technology has played a very important role in the field of economics and in the field of globalization, privatization, and commercialization. There is no parallel, party compared to this science and technology that has created as ma'am has already said, the amount of investment in the sports industry reflects everything. So it is no doubt about it. But again, my question is the objectives of the origin of sports. This most philosophical question I like to put. It sports originated for fun, enjoyment, creativity, peace, and tranquility. Now, application of science and technology, whether it has taken us a long distance from these original objectives of sports, do we now find any enjoyment and recreation whenever we watch a match? There are so many factors are there, as ma'am has already discussed. Today, this science and technology in various ways are trying to give more interest, more fun and enjoyment. But actually, do we really get it? This is another question. And whether science and technology, and especially AI, can play a role to change the strategy of sports and the sports performance of a particular player when he or she is in the field of play. Because performance does not depend only on the physical fitness and other factors. A very important role is being played by the psychological factors, our emotion, our thinking, our stress, tension, anxiety, so on and so forth. So artificial intelligence, can it play any positive role to change these human factors? This is what I want to know. And another thing I could come across with my little experience, that the more rich a country is economically, they get the better advantage over the poor country. So it is now a competition among the inequalities. Now a country like India cannot fight with the country like USA, Australia, or USA. It is an unequal competition so far my thinking is concerned. So, and finally, ma'am has already pointed out, I have nothing to say, we have to think about the ethical use of sports and technology. Now, it is we who are responsible to just discuss and find out the guidelines, as she told, what will be the guidelines for the use of the ethics of sports and the ethical use of technology. This is my humble submission to ma'am. As I told you earlier, whenever the question of science and technology comes, it goes over my head. Thank you. With all due respect, sir, some of the questions I've already highlighted in my presentation, because these are the questions raised based on the AI and intelligence. First, if I'm not wrong, sir said, let's start backwards, that it's a fight of inequalities. Sir, sports competition has always been the fight of inequalities. We could never compare, even when AI was not there, the kind of infrastructure, the kind of training, the kind of individualized program were there existing in USA was still, a dream in India. We are catching up, but still it has always been unequal. So, but with AI, that inequality will become even more. That's no doubt about it. As I said towards the end of my presentation, कि जिस देश के पास जितना पैसा होगा, वो उतना अच्छा सॉफ्टवेयर लेगा और उससे उतनी अच्छी खिलाड़ी तैयार करने की कोशिश करेगा. But all said and done, competition at the end humans के बीच में ही होगा. Technology will provide a support for the selection, for the training, for strategy and all that. But competition ground पे उस समय humans में ही होगा. So if
genetically we are good in something, with the help of this software we will still have high chances to do well in those games. If I give an example of Jamaica, no matter how good Americans are, they still could not find the competitor for Usain Bolt, right? So ultimately software America के पास हो, Jamaica के पास हो, but run तो Usain Bolt ही करेंगे. So human talent will always be a priority. It will always be important, but these intelligence will help you to find the right talent for that particular game. हमारे साथ क्या होता है, लाइक इफ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ एमएस धोनी, आधी जिंदगी वो फुटबॉल खेल रहे थे, तब किसी ने उनको बताया कि अरे भाई तुम क्रिकेट खेलो. He started batting when somebody said you become a wicket keeper, and then वो टैलेंट अगर वो सही समय पे हो जाता तो that days also he would have practiced for cricket. So yes, that's a challenge. जिस कंपनी के पास जितना अच्छा सॉफ्टवेयर आएगा वो उतनी अच्छी टीम चुनेगी, वो उतना अच्छा टीम बनाएगी, बट अल्टीमेटली ग्राउंड पे तो ह्यूमंस ही खेलेंगे. सेकेंड थिंग, स्ट्रेटेजी जो हम इन गेम प्लेन कर सकते हैं सर, वही एक इसका सबसे अच्छा फायदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि ये आपको रियल टाइम डेटा देता है. ग्राउंड पे जब प्लेयर खेल रहा है उसको सेंसर्स लगे हुए हैं विच आर वायरलेस. एक कुछ गैजेट उसने पहना है, मे बी अ स्मार्ट वॉच, मे बी कैटापल्ट डिवाइस, और उसका सारा इंफॉर्मेशन जो है वो वहां पे कंप्यूटर पे आ रहा है, और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे खेलते समय हम उसके डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं, और उस बेस पे अगर हमें लग रहा है कि ये फटीग है या इसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, वी कैन चेंज दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रेटेजी राइट एंड देयर. कई बार हम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हैं, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने ऑस्ट्रेलिया के सारे मैचेस का पिछले 5 साल का, जो टीम अभी खेल रही है, जब वो टीम का हमने डेटा डाला हुआ है, तो जब ऑस्ट्रेलिया के मैच को हम एनालाइज कर रहे हैं, कुछ डेटा डाल रहे हैं, तो वो उसके बेस पे उनकी स्ट्रेटेजी प्रिडिक्ट कर सकता है. और वो प्रिडिक्शन अगर हम वो जो कि नॉट 100% बट 80-90% वो प्रिडिक्शन सही निकलते हैं बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ डेटा यू हैव फेड. उसके बेस पे हम हमारी मिड गेम स्ट्रेटेजीज भी चेंज कर सकते हैं. सो दैट इज पॉसिबल. यस, for psychological parameters still there are a lot of softwares, which was your third questions, ki how to measure the psychological parameters during the game, because हम तो पहले सिर्फ क्वेश्चनर भरवाते थे, बट अभी क्या है, हमारे हार्ट बीट जो मूवमेंट्स होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे जो हार्मोन्स है, कॉर्टिसोल्स हैं या फिर एड्रेनलिन है, इनके जो अप डाउन्स हो रहे हैं, ऑब्वियसली इस पे अभी रिसर्च चल रही है, उसके बेस पे वो साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स को भी असेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि गेम में उस समय उसका किस तरह का है, एंड इफ दैट कम्स दैट विल चेंज द होल पिक्चर. सो दैट इज आल्सो डूइंग. एंड कमिंग बैक टू योर फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, एवरी चेंज कम्स विद इट्स चैलेंजेस. आज हमें लगता है कि जब हमारे पास फोन नहीं थे तो हमें कभी कभी बड़ा लगता था एक फोन होगा तो हम कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे पाते, हम कितने सारे डिवास्टेशंस को रोक पाते. फिर फोन आ गया. आई स्टिल रिमेम्बर जब हमारे यहाँ लैंडलाइन फोन था, और मेरा ग्वालियर में सिलेक्शन हुआ था 1998 में. 98 में. उस टाइम पे लैंडलाइंस होते थे, मोबाइल नहीं आया था. हॉस्टल में एक फोन होता था, एंड वी यूज्ड टू फील ट्रिमेंडसली होमसिक. घर की बहुत याद आती थी, और कई बार मन होता था कि देख लें एक बार, और घर वालों को भी लगता था बच्चे को देख लें एक बार. तो मैं ऐसे बैठे बैठे जब हम वेट करते थे हमारे फोन्स का, हमारे नंबर का, मैं सोचती थी कब ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी ना, कभी ऐसा हो सकता है क्या जादू कि हम बात कर रहे हैं और सामने उसको देख पाए जिससे हम बात कर रहे हैं. When video call was introduced initially on the WhatsApp, I remembered that day कि ये हो गया. With something which I thought 10 years back, it is now executed. But again, ethical concerns will always be there. Now, it is the major responsibility of the associations, governing bodies. Now they have to set the rules and frames in very different manners. उनको पूरा अपना rules जो है, अगर if they are allowing so much invasion of technology in the field, they have to work a lot on the rules and regulations, keeping all this in mind. And now not only the sports person, they also have to involve tech giants into the committees, those who are going to frame the rules and all, just to make sure that जितना possible हो सके उतना हम इसको ethically conduct कर पाएं. जैसे हम डोपिंग के लिए बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि जो पकड़ा गया वो चोर है. We can't say that those who are winning and they all are not doing doping. It's just that something which they are using has not been detected or may not be in the list of WADA. Maybe it is way ahead of what others are doing this time. So technology is maybe going to be the same. But yes, we really have to address the ethical concerns. We really have to, take
अभी से उस पे हमें एडवांस में ही उसके लिए रूल्स बना के चलना पड़ेगा, सो दैट जो एसेंस है गेम का, जिससे शुरू हुए थे गेम्स, टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अ हेल्दी कंपटीशन, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, वो इंटैक्ट रह पाए. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चंस, आई हैव सेटिस्फाइड योर क्वेरीज, and I will rest my answers here. Thank you so much, ma'am. Thank you. থ্যাংক ইউ ম্যাম অ্যান্ড থ্যাংক ইউ স্যার। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যারকে, স্যার প্রশ্নগুলো উত্থাপন করার জন্য। আশা করি আমাদের ছাত্রদের কাছে আরো স্পষ্ট হয়েছে। ম্যাম, one question is left in chat box. Ma'am, Okay, yes, it was regarding the selection. I think so I explained when I was saying selection of individual players. As I said कि हम प्लेयर्स के डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स आप पढ़ोगे आपके सिलेबस में, उसका आर्म लेंथ कितना है, उसका चेस्ट गर्थ कितना है, उसका हाइट कितना है, उसका वेट कितना है, ऑल दैट वी एंटर, प्लस वी आल्सो एंटर इज फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग, उसका बायोमैकेनिकल जो भी उसके पोस्चर्स हैं, और वो हम डेटा सॉफ्टवेयर में फीड करते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी इंटरनेशनल प्लेयर्स का, एलीट प्लेयर्स का डेटा फीड है, वो उसको कंपेयर करता है, एंड देन दे शो कि विच काइंड ऑफ अ गेम और पोजीशन दिस प्लेयर विल बी फिटेड। सो कुछ डेटा जो मैंने बोला कि जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, नंबर्स में नहीं डाल सकते, सब्जेक्टिव जजमेंट होता है, उसको भी इस सॉफ्टवेयर की सहायता से हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। सो इट विल गिव अस द बेस्ट पॉसिबल चॉइस फॉर दैट पर्टिकुलर गेम और फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन इन अ पर्टिकुलर गेम। सो यस, स्पोर्ट्स सिलेक्शन के लिए तो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है इसका। Thank you, ma'am, and thank you, sir. Now I would like to request Dr. Keshav Chandra Gop, sir, for vote of thanks in the 81st episode in the Alapon. Dr. Keshav Chandra Gop, sir, please, the organizing secretary of Susto Dehe Susto Mone in Alapon. Keshav, sir, please. Keshav, sir, please. হচ্ছে না। আচ্ছা আচ্ছা, due to some network issues, and Dr. Keshav Chandra Gop has joined, but few issues are there. Ma'am, finally. It's okay, sir. It's absolutely fine. There are technical glitches always, but I would just would like to thank everyone for being there throughout the presentation. I know sometimes these things get too technical, but still you all were there. But next time I will tell you, students, because your college has taken a very good initiative for calling the people who can, give you the knowledge about different aspects because of the, ongoing things which are there trending in the sports field. So आप थोड़ा actively participate करो. Switch on your cameras, ask questions. When somebody is trying to interact with you, don't hesitate. I know there are the problems. Some of you may be feeling little shy. थोड़ा confidence का problem हो सकता है. But if not now, then when? अगर आप यहाँ पे रह के क्वेश्चंस अपने प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, आगे जाके कैसे करोगे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे? सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू हैव सच सेशंस, बी ओपन. सब जानते हैं, एवरीबडी हैज बीन अ बीपीएड स्टूडेंट इन देयर इयर्स, सो वी टोटली अंडरस्टैंड योर पोजीशन, we totally understand your fears, your concerns, so don't worry, nobody will say anything which you don't want to hear. So please open up, ask your queries, interact, talk to the experts. If they're trying to converse with you, do that next time. Okay, and thank you so much, Mrityunjay sir. Thank you, ma'am. Neetu ma'am, and thank you so much for getting Upal sir here. I got to see him today live, so thank you so much, sir, for being there. And thank you for so many things. I have been a regular participant only for a few live Upal lectures I could not attend. Upal sir, मेरा भी गुरुजी. Upal sir, मेरा भी गुरुजी है. I had been to LNCP during the year 1976-78. I did my master's program over there. So I am so lucky I got Upal sir as my teacher. Ma'am, another one person, Abhijit Bandyopadhyay sir, has raised his hand. Yes, Abhijit. Abhijit sir, please. Yes, madam. Good evening.
Good evening, sir. Actually, I want to know from you that presently, is there any software to measure the biochemical changes of a player during the match situation? Yes, sir. As I said, there are sensors which are now used in laboratory testing more. अभी field testing पे नहीं इतने use कर रहे हैं openly with the players. Not what I know, right? But yes, lab testing में उन्होंने already इस तरह के sensors को use करना शुरू कर दिया to see the or to address the biochemical changes during the activity. So maybe soon you will be finding them on the field testing as well. Thank you. ধন্যবাদ অভিজিৎ স্যারকে। ফাইনালি নমস্কার। সুস্থ দেহে সুস্থ মন এই নিয়েই আলাপন 81তম পর্বের একদম অন্তিম লগ্নে আমরা উপস্থিত হয়েছি। আজ এই পর্বে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন এখনো পর্যন্ত ডক্টর অরুণ কুমার উপ্পল স্যার, प्रोफेसर परिमल देवनाथ सर। सैरदेर हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ और नमन करती हूँ सर दोनों सर को। और आज हमारे बीच पहले से स्पीकर की तरफ से उपस्थित है मैं डॉक्टर सुमन पांडे महोदय मैम को भी थैंक यू बोलती हूँ और मैम को इनवाइट करती हूँ हमारे इंस्टीट्यूट में आप फिजिकली आइए और हमारे स्टूडेंट को और हम लोग को और एनरिच कीजिए। थैंक यू मैम। एंड फाइनली जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो और भी टीचर्स या रेस्पेक्टेड डेलीगेट्स है, सभी को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से नमस्कार। আপনাদের সবার পুজো খুব ভালো কাটুক, সবাই খুব ভালো থাকুন, পুজো এই উৎসব মরশুম ভালো কাটুক এই কামনা করে আমাদের মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এবং আলাপনের এন্টায়ার টিমের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে যথাযোগ্য সম্মান কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমাদের এই পর্ব শেষ করছি। থ্যাংক ইউ, নমস্কার। নমস্কার। Thank you. Happy Durga Puja to all in advance. Good night. Good night. Good night, sir. Good night, ma'am. Good night.